Hello. A very, 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 very good evening to everybody. Am I audible? Let me know that. You can show a thumbs up. If you want, you can interact. I have the audios also on, but everybody would be interacting at one time would be a problem. So, in fact, you can put me things in the chat also. But if, the moment when I'm discussing few things, if you have a query, raise your hand and you can talk to me. Okay, we can have the audio interaction also. So it's not only I'm going to limit it to the chat. Okay, so but in between you all can say yes, no, that is possible, so that, and most of the things I want you to be answering, we will go by audio interaction, because when I'm discussing things, I want you all to interact today, because I'll be interacting less. Okay, by the way, all of you know my name? Yes, sir. Yeah, okay. My name is Ramesh. The full name is, I'll just write it so that you know the exact spelling, because in the message too you had a spelling mistake which was there. So it is Karanath. So the full name is Ramesh Karnath. Okay, and all of you are from ARIV, right? Okay, and you all have done a lot of things the entire year. You have learned beautifully. That's some. दे देख देख देखा है आपने वीडियो में. Okay, you have seen me in the videos there. You have the QR book, right? Yes, sir. And in the QR book for grade 10, out of the 7 almost out of the 7 topics, 4 topics I have done for you. Right, right from similarity, theorem of Pythagoras, circle, and trigonometry. Those are the 4 topics which I've covered for you, and a few things here and there from the topic mensuration also. So that is where you would have seen me. Okay, I would want you all to have your videos on. That is better, because that will give me a better idea interacting. Okay, thank you, Shruti, for the first one to be actually having a video on. Good evening, Shruti. If I can have others also. Okay, second, what we have is, okay, Nancy is here, Pankaj is here, Swayam, thank you, Girija, thank you. So welcome to the session. So let's have it. Janvi is here, Sandhya is here. Okay, so good evening, everybody. So let's have the videos on, because there's a lot of interaction which we need to do. ये सेशन में मैं कम बात करूंगा, आप ज्यादा बात करोगे. रेडी हो? आप बोलोगे सर वीडियो में तो आप ही बात कर रहे थे. वीडियो में, because I was, but if you have seen the videos, have you all seen the videos? Have you been using the videos the entire year? Have you used that? Yes, sir. पक्का effectively यूज किया है, काम आया है आपको? Has it been useful during the exams and before that? Okay, चलो let's see. I'll tell you, उसमें हम लोग चाहते थे कि हम इंटरेक्ट करें, बट जब हम वहां पे बात कर रहे हैं आपके लिए वीडियोस जब भी हमने रिकॉर्ड किया है, वो वीडियोस एंटायरली इज फ्रॉम अ स्टूडियो राइट नाउ. Right now I'm also into a studio environment. Okay, so from that studio I'm relaying these lectures to you. Okay, so in those studios, in front of the cameras, we have been speaking. Okay, so हम एज्यूम ये करते हैं कि आप हो हमारे सामने और हमारे सामने हम बात करें, बट एटलीस्ट अभी इस सेशन में एटलीस्ट आपके चेहरे तो देख सकते हैं. मतलब हम एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सामने देख के पता चलेगा कि आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, हंस रहे हो, नहीं हंस रहे हो. Okay, so that's good to see everybody. By the way, so everybody is prepared for your examinations? हाँ, आप बात कर सकते हो? हाँ, कोई बोलना चाहता है? Okay, your preparations done for geometry? Okay, that's nice. Now I'll tell you, आपको जब ये session आया रहेगा, it was written as TP session, right now? Yeah. So by the way, it's not TP means, I just wanted to let you know, TP means here, what I mean to say is that that's a message. It is a thought-provoking session. That means here, you need to actually provoke your thought. That is what I'm going to do. So I'll push you towards certain things where you're going to think. Okay,
a few things before we start. I wanted to start with a particular statement. Okay, I want you to go through the statement so that we have interaction on this. Okay, can you read this? Strive for continuous improvement, not perfection. अभी ज्यादातर हम टीचर्स क्या बोलते हैं, अरे परफेक्टली लिखो, परफेक्टली लिखो, परफेक्टली लिखो. अब मैं हमेशा I believe in this statement. You can't be perfect. Whatever you do, I do a session today, I would say this was a perfect session. No, it doesn't happen, because I may take another session that would that may be better than this. So that is why I won't ever say that whatever I've done in the recording would be the perfect. At any point of time, there could be something better I could have done. So that is why I'm saying better कर सकते हो, आप perfect कभी नहीं कर सकते हो. और एक reason है इसके पीछे. There's one more statement which I would like to add. Read that. The road to improvement is always under construction. You can't perfect it because you're always improving, and that improvement will never cease. It never stops. It goes on, goes on, goes on. वो हमेशा under construction है, कभी complete नहीं होगा. हाँ, under construction हमारे बम्बई के roads की तरह, जो हमेशा ऐसे रहते वैसे ही. Okay. So, by the way, you would be wondering, what are we doing today? So when I said thought-provoking session, I just want to actually discuss, okay, what do you see on the screen right now? Circles. Circles. So what am I going to do is, because when we had a discussion, when I and Nimisha ma'am had a discussion, so I said कि Pankaj sir has already discussed with you the entire guidance session, right? Guidance session आपने पूरा देख लिया, right? Yes, sir. Yes, sir. So he was taking that for entirely for math. So then I said I would actually be interested in talking to you with respect to question number 4. आपको पसंद है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेपर का? No, sir. Yes, sir. पसंद है, नहीं पसंद है? कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं. No, no. नहीं पसंद है. Sir, हाँ, मजाक Sandhya है, is last saying question. no. Nancy is having a Depends smile. on the question है. Raj is having no expression. Raj says no expressions. I'm being neutral. Okay, okay. Let me tell you one thing. चलो एक चीज बोलता हूँ आपको सबको. सब लोग हमेशा क्या बोलते हैं, सर ये तो बाहर का सम है, यहाँ पे सर बाहर का सम आ गया है, सर ये सम अगर टेक्स्ट बुक का होता ना तो मैं सॉल्व कर लेता. करेक्ट ना? हाँ, बट अगर बाहर का सम आया, बट रिमेंबर दैट इज व्हाट वी नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन. यू कांट एवर से और यू कांट एवर हैव दैट फीलिंग कि ये बाहर का सम है. ये फीलिंग से कभी मत रहना. ओके, दैट इज व्हाट आई वांट यू टू नो. रिमेंबर वन थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू, बाहर का सम नहीं है ये, हमें टेक्स्ट बुक का सम है. हमें क्या आदत है मालूम है? व्हाट वी आर यूज्ड टू इज, हमारे टेक्स्ट बुक में ये सब चैप्टर्स मिला के लेट्स से आई एम सेइंग 500 सम्स है, तो 500 सम्स मुझे आता है. सर आप उसमें से कोई भी चीज आप टेस्ट में डाल दो, मैं सब कर लूंगा. उसके अलावा एक भी सम अगर अलग आया तो आई एम वरीड. नो, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट. बट आपने पूरे टेक्स्ट बुक में, और हमने व्हेन वी वर डूइंग द वीडियोस आल्सो, इन दोस वीडियोस व्हाट वी हैव ट्राइड टू टेल यू इज, इफ यू हैव सीन द वीडियोस केयरफुली, were we giving the answers directly to you, saying that ये आपका first step है, ये लिखो, ये second step है, ये लिखो, ये 10 step है, you are supposed to write this? Have we given that in the video? Sir, understand. Yes. No. Always you have to understand the logic. क्यों करते हैं? मतलब अगर हम दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव भी कर रहे हैं तो हम बताते हैं आपको कि आपको ये दो ट्राइंगल कंसिडर क्यों कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में. ओके, सोच रहे हो तो आप उसके सिमिलैरिटी पे जा रहे हो, कॉन्ग्रुएंस पे जा रहे हो, सिमिलैरिटी पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये सब चीज समझ है. और ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग दैट, in that entire thought process, in that entire process, you are actually developing that analytical part जो इंपॉर्टेंट है. और इससे आपका कोई भी सम आप कर लो, आपको आ जाएगा. चलो अभी ये डिस्कस करते हैं. कुछ अच्छे अच्छे सम्स मैंने सेलेक्ट किए, स्पेशली this one I have selected, and that is why I said I am talking less, you're going to talk more now. Okay, have you seen this sum? check करो एक बार. Yes, sir. Last year board paper. Yes. हाँ, Equal ये to सबने half सॉल्व है. किया है. मैं कुछ कुछ सेलेक्टेड सम्स डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ. ओके, ये लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम का पेपर था. आपको आंसर आता रहेगा. ये क्यों अप्रोच क्या है वो सिखाना चाहता हूं, वो डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांटेड टू बी सेड. ओके, नाउ टुडे इन द सेशन ना, whatever I am doing, I am not asking you to actually write things. You need not write. You can just take a screenshot of it. You can take a screenshot of this question. You need not even do the solution because I am going to present everything. पूरा खत्म होने के बाद आप उस solution का स्क्रीनशॉट ले लो. दैट मींस आपको लिखने की मेहनत नहीं है. सो स्पेंड
we spend more time on discussing. That is what I want. Writing part आपको करने की अभी जरूरत नहीं, ठीक है? चलो. So when I say in this particular sum, okay, you can just take a screenshot first for the question. All of you done? चलो Yes, अभी हम जब भी डिस्कस करते हैं आपको इसके पास इसका सॉल्यूशन पता भी होगा. Most of you would be knowing the solution, but my question to you will be, why are we doing those steps? Okay, now when you have this sum in front of you, so if you see this here in the two proof, what we have is, it says that we want measure of angle A is equal to half measure of arc BYD minus measure of arc BXD. दैट मीन्स जैसे आप टू प्रूफ देखते हो, टू प्रूफ देख के आपको ये पता चला कि मुझे इस एंगल का मेजर चाहिए एंड दैट एंगल हैज टू बी रिलेटेड विद द मेजर ऑफ द टू आर्क्स. ओके, सो यू अंडरस्टूड दैट. अभी इसको सोचते कैसे हो? तो आप जैसे ही बोलोगे ओके, अब गिवन में देखो, गिवन में क्या दिया? गिवन में देयर आर टू टेंजेंट्स AB एंड AD. टेल मी व्हेन देयर इज टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन अप्लाई? ओके, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है जिससे आप बोलोगे सर AB एंड AD इक्वल है. ठीक है, आप मार्क करके रख लो. Okay, very good. What you said is, he's saying that yes, this angle is going to be 90 degree. This angle is okay. Why are this angles 90 degree? Superb. So you said, sir, मैं tangent segment भी theorem भी use कर रहा हूँ, tangent theorem भी use कर रहा हूँ. But listen, हमें segment से कुछ लेना देना है ही नहीं, because we are going only to talk about angles and okay, angles and arc. और एक चीज, I don't know whether I did speak about it in the video or. But when I am actually with the students and when I take a session, I always speak. Circle chapter में एक चीज याद रखना है, throughout याद रखना है, पूरा चैप्टर में. That's the golden rule you need to remember. एंगल का मेजर आर्क से, आर्क का मेजर एंगल से. I repeat, एंगल का मेजर आर्क से, आर्क का मेजर एंगल से. Now what did I mean by this? Whenever you want the measure of an angle, you have to relate it with an arc. एंगल का मेजर हमेशा आर्क से मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल एंगल का मेजर किससे मिलता है? Yes, it is equal to measure of minor arc. Inscribed angle का measure किससे मिलता है? Very good. If it is a angle between the tangent and the secant, उसका भी measure intercepted arc से मिलता है. Correct. If an angle has its vertex outside the circle, then उसका measure भी arc से मिलता है. That means what I'm trying to tell you is, whenever there is an angle, angle का measure हमेशा arc से मिलेगा. ये याद रखना. Same way, if there is an arc, उसका मेजर हमेशा एंगल से मिलेगा. वो या तो सेंट्रल एंगल होगा, वो या तो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, या तो इट विल बी एन एंगल व्हिच इज बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. दैट्स द लॉजिक. ओके, सो व्हेन यू गो बाय दैट, यू विल से सर मुझे तो ये एंगल चाहिए. ओके, नाउ यू गॉट टू एंगल्स हियर. सो सिंस दिस टू एंगल्स आर 90, इज दिस एंगल एक्चुअली बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर फिगर? दिस एंगल, does it belong to any particular figure, any triangle, any quadrilateral, something like that? Okay, but in other words, can I say I'm just going into this quadrilateral right now? In this quadrilateral, you have got this angle to be 90, this angle to be 90. So tell me one thing, what is the sum of angle and angle C? 180, because you are saying sir ये quadrilateral में. तो सबसे पहला चीज मुझे एंगल ए का मेजर चाहिए. तो आप बोलोगे सर उससे मिल जाएगा. तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. Because you are focusing on getting angle A, angle A, angle A. Now you'll say substitute the values which you know. You'll say B पता है, D पता है. चलो substitute करते हैं. Okay. So I'm just taking the thought process. I don't want you to write anything, because everything you take a screenshot after that. Okay. So now you'll say this is not over, because at 90 plus 90, 180 I'll shift on to the other side. So what do I get on the other side? Yes, and you get 360 minus 180. That means you get angle A plus angle C is equal to 180 degree. Beautiful. But once you get this, you are saying, sir, मैं तो टू प्रूफ में देख रहा हूं कि मुझे सिर्फ एंगल ए चाहिए. So when I want only angle A, my objective is keep angle A on the left hand side. So what do I do? Can I shift that C on to the other side? So what do I get? I get it as 180 minus angle C. Now this is the first process which you do. So what happens is, when you reach this step, you are satisfied now, at least half satisfied, saying that अरे कुछ तो मिला, because मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया. चलो अभी बोलोगे अभी सर राइट हैंड साइड पे वर्क करना है. ठीक है, अभी राइट हैंड साइड पे वर्क. नाउ लुक एट राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में आप देखोगे मुझे तो हाफ मेजर ऑफ आर्क BYD BXD ये सब चाहिए.
Now you'll start thinking, "Arey, but on the right hand side, I have 180, I have angle C. I don't have arcs, but what did you learn? Angle को relate करो arc से. अगर arc चाहिए तो क्या angle? Okay, uh, uh, सुहन ना? सुहान, टेल मी, अभी यहां पे राइट हैंड साइड में एक एंगल दिख रहा है आपको, एंगल सी. सो व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल सी? Very good. And Suhan, what is the reason we write for that? What is the reason you have learned when you? Very good. Suhan, one more correction there. It is definition of measure of minor arc. Okay, definition of measure of minor arc लिखना, वो याद रखना. So आपने बरोबर बोला, सुहान ने सही बोला. सुहान ने बोला सर हम वो लिख सकते हैं. अब ये क्यों किया मैंने? समझो, बिकॉज मुझे आर्क चाहिए, एंगल को निकाल के मैंने आर्क लाया. सो इंस्टेड ऑफ एंगल सी आई कैन जस्ट राइट इट एज आर्क. नाउ यू आर प्रीटी मोर रिलैक्स्ड. थोड़ा और क्यों? बिकॉज आर्क तो आया, अभी मुझे सिर्फ एक ही आर्क लाना है. कौन सा आर्क लाना है? ओके, अभी अब बोलोगे सर आर्क बीवाईडी लाओ कैसे मैं? ठीक है, चलो देखते हैं. Now look here in the figure, arc BYD. Right now, is this arc related to any angle, any inscribed angle right now? Oh, it's related with angle C, but okay, but you don't have this angle C right here because it's a reflex angle C. ये reflex angle है, वो आप यूज नहीं कर पाओगे. तो आप बोलोगे सर अभी तो right now कुछ नहीं है, तो ठीक है चलो और देखते हैं. Tell me right now. हाँ, किसने बोला है? किसने बोला? Okay, Arnav. Arnav, can I have you on the screen, beta? Okay, Arnav. So Arnav is saying, sir, arc BYD और arc BXD ये दोनों मिला के सर्कल बनता है. बनता है? And what is the sum? What is the measure of that? Okay. अरे बट आप ये लिखोगे कैसे? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 360 है ही नहीं. अभी इस स्टेटमेंट में आपके पास 360 लिख दिया है क्या? नहीं है. तो आप okay, why? But why do you do that? Why will you do that? Okay, Hansel says 360 लाने के लिए. चलो और एक रीजन देता हूं. ये परफेक्ट है. 360 लाने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और एक रीजन बताओ, सुनो. कभी भी अगर अटके ना, 2 प्रूफ को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो. Now when I take this 2 proof, this 2, if I shift that 2 onto the other side, what do I get on the left hand side? Yes, I have got angle A, but you said I want twice of angle A. In order to get twice of angle A, what do? I multiply throughout by 2. And that is what you do. And that is why you'll multiply throughout by 2. And when you multiply throughout by 2, so there are 2 reasons. As Hansel said, sir, 360 लाने के लिए वो भी सोच सकते हो, या तो twice लाने के लिए. And that is what you will get it as 360 minus twice throughout. Now look here. Now tell me, what is 360? When you say 360 right now for this circle, what is 360? Yes, can we write it as measure of arc BXD plus measure of arc BYD? And we write that multiplying throughout by 2. And then we get, that is what we get here. It is 360 can be written as measure of arc BXD plus measure of arc BYD. And now you solve it. You have the like terms here. Twice measure of arc BXD here plus measure of arc BXD. Solve that. What do you get? Minus. And once you get that minus, you have to just shift that 2 onto the other side. 2 comes here, it becomes half, and you get measure of angle A is half the measure of the arc BYD minus the measure of arc BXD, and you get the proof. Now tell me, even if you know the proof, what I was interested in is I was interested in discussing the thought process. आप क्यों करते हो? Steps important नहीं है. आज जब भी आप सीख रहे हो आपके लिए steps important नहीं है. आप क्यों कर रहे हो? क्या reason था वो समझो. Any doubts anybody has got in this? So I'll show you both the screens of both the steps which I have written. You can just take a screenshot. Ujay, please, yeah. So I'll just take you to the previous slide. So first you take a screenshot of that. So that's the first slide. Just take a screenshot of this. Okay, then coming on to the next one. I'll show the next slide. Next slide is this. Done? Okay. So chalo, I'll ask you a few more. Now, I'll just be giving you hints for sums. I'm going to present a nice one now. Okay, this one. Have you seen a sum like this? Yes, sir. You can take a screenshot, few of you, because बहुत सारे sums इधर उधर आपने कभी देखे होंगे.
चलो इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने वाला हूं मैं, सब रेडी हो? चलो I'll ask you now. Listen. Now my question to you is what is given I'll explain. Okay, सबसे पहले उन्होंने बोला दो सर्कल्स हैं, we have two circles touching each other at point A. Then it says there are two tangents. One is line L, which is a common tangent to both the circle. There is another line, that is line M. This is another tangent to both the circles. And they say you have two segments here, AC and AB. Okay. First question to you, two things. Prove D is a midpoint. Okay, we need to prove D is a midpoint of BC. And the second question is prove angle BAC is equal to 90 degree. Okay, second पे बाद में जाते हैं. Let's prove on the first one. Tell me, when will D become the midpoint of BC? Okay, very good. Hansel is saying, Suhan is saying, Vedant is saying, sir, BD और DC equal होना चाहिए. चलो मान लिया. अभी सोचना ध्यान से. अभी आपको अप्रोच सिखाता हूं. सुनो. अगर आपको दो सेगमेंट्स जब भी इक्वल चाहिए, सुनना what I'm trying to tell you. Yeah, ask ना. हाँ, मतलब CSCT से कर सकते हो. अगर मेरा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुआ तो करेक्ट है. हाँ, we don't need to do that. We don't need to do that. I'll just give you a hint. एक हिंट देता हूं. हंसल और सुहान जो बोल रहे हैं उसका हिंट देता हूं. सुनो, अभी जब भी आपने डीबी और डीसी इक्वल प्रूफ करना सोचा, ओके, लिसन टू दिस. हाउ डू यू थिंक इन एन एग्जामिनेशन? आप बोलोगे सर इक्वल चाहिए. टेल मी, डू दे बिलोंग टू द सेम ट्राइंगल? DB is another side, DC is another side, they belong to two different triangles. Then एक थॉट आएगा जैसे सुवन ने बोला हाँ सर, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताऊं तो मैं DB और DC को इक्वल ले सकता हूं, CSCT. दैट इज आल्सो करेक्ट. बट उससे पहले, because this is from the chapter circle and here do we have two circles? एक हिंट देता हूं, सुनना ध्यान से. कभी भी याद रखना, इन द चैप्टर सर्कल अगर एक से ज्यादा सर्कल कभी भी आए ना आपको, इट इज ऑलवेज एडवांटेजेस. तो क्या करने उनमें, सिर्फ एक सर्कल को एक टाइम पे देखना. आई रिपीट माई स्टेटमेंट ना, लिसन. सिर्फ एक सर्कल को एक टाइम पे देखना. जस्ट ऑब्जर्व वन सर्कल एट अ टाइम. आई टेल यू, आई वांट यू टू ऑब्जर्व दिस बिगर सर्कल. नाउ टेल मी, फॉर दिस बिगर सर्कल डू यू हैव एन एक्सटर्नल पॉइंट? चेक करो. टेल मी, व्हाट इज दैट एक्सटर्नल पॉइंट? Okay, नहीं, इसके अलावा वो तो because it is not named only. Is D the external point? Yes, sir. Tell me, for a circle when you have an external point, तो आपके दिमाग में एक theorem आता है. अभी चेक करो, in this figure, do you have tangents drawn to that circle? Which one? Tell me. So can we write DB and DA to be equal? That's my first statement. Okay, और मैंने क्यों सोचा? Because मुझे DB के बारे में सोचना है. Okay, अभी जैसे आपको ये मिला ना, आपको सेकंड स्टेटमेंट स्ट्राइक होएगा. आप बोलोगे सर दूसरे सर्कल में जाते हैं. Look at this circle. For this circle is D an external point. So can we get DC and DA equal? और इन दोनों का रीजन आप चेक करो. DB इक्वल टू DA और DC इक्वल टू DA जब भी आपने लिखा, दोनों का रीजन वुड इट बी द सेम? ब्यूटीफुल. आपने सोचा ओके, अभी मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को देख के बताओ इससे क्या मिलेगा. You will say DB is equal to DC, and if DB is equal to DC, then what is D? That means first four lines में आपका first proof खत्म. Tell me, was it easy? Easy, simple, right? Okay. Now, सेकेंड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी सुनो, यहां पे मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूं कैसे सोचना है. सुनो, व्हाट डू वी वांट एंगल BAC, करेक्ट? वी वांट एंगल BAC टू बी हाउ मच? 90. Now I want everybody to see it very carefully. Look at the figure and tell me angle BAC right now is made up of how many angles? Two angles. Okay, beautiful. Listen to this. Listen to this. It is interesting. So you are saying sir ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है. एग्री करते हो? चलो, आपने बोला सर ये दो एंगल से बना हुआ है. चलो मान लिया. अभी जैसे ही दो एंगल्स होगा ना, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आपको एक रूल अप्लाई करना है बहुत से टाइम्स में, and that is called as British rule. You know what is the British rules? What they used to do? They used to always apply a rule called as divide and rule. इब्राहिम ने सही बोला.
इब्राहिम एकदम परफेक्ट बोला, डिवाइड एंड रूल। तो यही अप्लाई करने का मतलब जब भी दो एंगल्स इक्वल चाहिए तो सोचना कैसा में, सिर्फ एक एंगल के बारे में सोचो, दोनों के बारे में नहीं सोचना है। तो I want you to look at this angle and tell me this angle DAB, does it belong to any triangle? I'm just asking about DAB. Tell me, does it belong to any triangle? मैं सिर्फ ये ओके, मुझे बताओ वो कौन से ट्राइंगल को बिलोंग करता है? ओके, अभी सिर्फ उस ट्राइंगल पे फोकस करना एंड टेल मी उस ट्राइंगल में, इन दैट ट्राइंगल डू यू हैव समथिंग इक्वल? डू यू हैव समथिंग इक्वल? हाँ, अभी तो मिला, अभी तो आपने बोला सर है ना। ओके, अभी मुझे बताओ अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो क्या होगा? हाँ, तो मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं? हाँ, एक मिनट आराम से आते। तो तुम लोग बोलोगे सर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, चलो एंगल्स इक्वल है। अभी सम को जब सिंप्लीफाई करना है तो एक काम करते हैं, हम इसको एक्स एक्स ले सकते हैं। दोनों एंगल्स के मेजर्स इक्वल है, मुझे मेजर्स तो पता नहीं है, सो आई विल टेक द मेजर एज एक्स, सो आई विल टेक दिस एज एक्स, सो दिस आल्सो एक्स, इतना लिख सकता हूं। सो सी दिस, आई हैव रिटन दैट एज अ नेक्स्ट स्टेप। ओके, नाउ टेल मी, आपने डिवाइड एंड रूल, इब्राहिम ने बोला सर डिवाइड एंड रूल अप्लाई करना है, सो वी डिड दिस। नाउ आई एम गोइंग टू दिस एंगल, नाउ कैन वी डू द सेम इन द नेक्स्ट ट्रायंगल? So in this triangle, do we have DC and DA equal? You will say yes. So if DC and DA are equal, tell me what happens now? हाँ, so इन दोनों के भी measures मुझे नहीं पता है, so I'll just take it as y. But I need not write all the steps again and again. So I'll just write similarly. And most of the times, this is your favorite statement which you write, your favorite word, similarly, because it avoids making you write everything, right? तो आपने बोला ठीक है सर, अभी सुनना interesting है. Tell me, we are interested in which angle? अभी फिगर में देख के मुझे ये बताओ, एंगल BAC का मेजर कितना है? ना ना ना, ओनली एंगल BAC, सिर्फ BAC. BAC, is it x plus y? करेक्ट ना? इट इज मेड अप ऑफ x, इट इज मेड अप ऑफ y. सो यू आर सेइंग सर हमने फिगर को देखा और हमें पता चला कि BAC तो x plus y से, बट मुझे पता मुझे BAC का मेजर कितना चाहिए? दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स मुझे x plus y की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? करेक्ट ना? लिसन, आई वांट यू टू थिंक नाउ. तो आप बोल रहे हो सर मुझे किसी भी तरीके से x plus y 90 मिलना चाहिए. अभी वो कैसे आएगा? चलो वो सोचते हैं. अभी x plus y equal to 90 मतलब क्या है? You want an equation which will involve x and y. अभी तो आपका फिगर पे ध्यान होना चाहिए, और फिगर पे ना सब x और y पे ध्यान देने का, x और y पे. ओके, इधर x है, इधर x है, इधर y है, सब x और y को जोड़ के कुछ इक्वेशन बन सकते हैं क्या? सोचो ना, सोचो. आयमान, वेरी गुड. आलोक, वेरी गुड, सुपर्ब. टेल मी, आपको यहां पे ट्राइंगल दिख रहा है ABC पूरा? इस ट्राइंगल में सब एंगल का सम कितना होगा? एंड दैट इज नथिंग बट इट इज x एंड y. चेक करो, x plus y plus this angle, that is x plus y. So can we use angle sum property of a triangle? So if I use that right now, what do I get now? Tell me, अगर मैं ये use करूं, so what do I get? I'll get x plus y plus x plus y is equal to 180 degree. Is this clear? Now tell me, what do you get further? बोलो, क्या मिलेगा? Yes, 2x plus 2y is equal to 180. Girija, you are right. That means if you divide 2 out by 2, what you will get? Or you take 2 common. Ultimately, you're going to get x plus y is equal to 90. And tell me, what is x plus y? That means, have you got angle BAC as 90 degree? Your proof is done. Now tell me, wasn't the proof easy? Now what I'm trying to tell you is, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, it is not about the sum, it is about the approach you have to have. मतलब कोई भी सम आए, हम सोचते कैसे हैं, किस डायरेक्शन में सोचते हैं, वो जरूरी है. आप टू प्रूफ को कैसे देखते हो, टू प्रूफ को एनालाइज कैसे करते हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है. ये आपको सीखना है, नॉट ओनली द सम्स का प्रूफ. मैं वो समझाना चाहता हूं. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? So I'll just give you the solution of this, proof of this, so you can take screenshot right from the start. Ujay, please zoom in, beta. Yeah. So I'll show you right from the start, first slide. So you can take this. That's the first one. Okay.
Done? So I'll go on to the next one. Then the next one, just a minute. I'll go on to the next one. That's the next one, the second slide. So where we went on to proving the second part. Okay, I'll go on to the further part of this. The next slide. The next slide is this, where we did angle sum property and we finished with the proof. So are you all fine with this till now, what we discussed? कुछ डाउट है किसी को? पक्का ना? अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग सम है और एक इंटरेस्टिंग सम अभी इसमें I want all of you to participate. Right now, Suhan has been very active, right? Girija has been active, Ayman, Alok, right? I want all of you to get into it, get answer questions, think. Important चीजें आप सोचो, okay? अभी next सम है, ये देखना बहुत मस्त है. Just take a screenshot of this, and I'll give you a minute time to understand the question. I'll give you a minute time to understand the question, only then I'll start. पहला आप क्वेश्चन देख लो, समझ लो, only then we'll start the discussion. उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. So see the figure, see what is given, see what we need to prove. There are two proofs here, so we'll focus on the first two proof. सोचो, कुछ सोच सकते हो क्या? Yeah, Ujay, bring me back. Yeah. चलो. So now when you see this, आप जब ये देख रहे हो, okay, did everybody see what is given? We have to prove the first part. Did everybody see the first part? मुझे triangle ABC और triangle ADC similar बताना है. तो चलो आपको सिर्फ मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ. ट्राइंगल ADC दिख रहा है, ADC और ABC ये है, देखो हाईलाइट किया, और ADC दिख रहा है. हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है. ओके, ADC में कोई एंगल पता है आपको? ट्राइंगल ADC में हाँ, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. हाउ कैन A be the common angle? A is not a common angle. A थोड़ी कॉमन एंगल है. देखो एंगल ADC का एंगल ये है और एंगल ABX का एंगल तो ये है. ये थोड़ी कॉमन एंगल है, दोनों अलग अलग एंगल्स है. ओके, एंगल ट्राइंगल ADC में आप बोल रहे हो एंगल ADC, सुहान बोल रहा है सर ये 90 है, बट ये ट्राइंगल ABX में कोई एंगल 90 है क्या? सुपर्ब, बिकॉज यू नो AX इज द डायमीटर. तो अगर AX डायमीटर है, दैट मींस दिस एंगल हैज टू बी 90. व्हाट इज द रीजन यू सेड? से वंस अगेन. Yes, you say angle in a semicircle or you say angle inscribed in a semicircle is a right angle. Okay, that means उसी को हमें पहले लिखना है. तो अभी मैं समझा भी रहा हूं क्यों लिख रहा हूं. तो आपने वो पहले लिखा, फिर उसको यूज करोगे तो आप बोलोगे सर दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 हो गया. अरे बट अगर मुझे सिमिलर बताना है, इफ यू वांट टू प्रूव देम सिमिलर, वी नीड टू हैव वन मोर पेयर ऑफ एंगल. चलो अभी आपको ढूंढना है, कैन वी गेट वन मोर पेयर ऑफ एंगल इक्वल congruent? Okay, Sejal is saying something. Sejal, say what? Okay, Ibrahim is saying that. Sejal is saying that. Which two angles? Very good. Superb answer. Superb. So when you're looking at this angle, angle AXB and angle ACB, or all of you are saying the same thing. Sir, ये angle, इसका intercepted arc ये है और इसका भी intercepted arc ये है. That means both these inscribed angles, they are equal. We know the reason angles inscribed in the same arc are congruent. Is this clear to everybody? Yes, that means now tell me, are both the triangles similar? तो आपने पहला लिखा, that is from that, और second लिखा because the reason is angles inscribed in the same arc, and that means you are saying sir both the triangles are similar. Tell me, was the first part easy? अभी सुनना, second part सबसे interesting है. फर्स्ट पार्ट सबने कर लिया और सबको इजी है बिकॉज आपने खुद किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया. यू डिड इट, आई वाज जस्ट शोइंग यू द प्रेजेंटेशन, दैट्स इट. सेकंड पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सेकंड पार्ट को पहले समझ लो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. दे आर सेइंग दैट यू हैव टू प्रूव एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं. हमें इस ट्राइंगल का एरिया वी वांटेड टू बी प्रूव्ड एज ABC, वी वांटेड एज ABC अपॉन 4R. अरे बट यू विल से व्हाट इज स्मॉल a, व्हाट इज स्मॉल b, व्हाट इज स्मॉल c. सी गिवन इन द ब्रैकेट, चेक करो. दे आर सेइंग BC is denoted as small a, okay, AC is denoted as small b, and AB is denoted as small c. ठीक है, चलो ये मैं आपको दे रहा हूं यहां पे.
So you have the values there. Tell me one thing, you're finding the area. When you talk about area of a triangle, what is the formula for area of a triangle? So what is the base and what is the height here? So can I write it as half into BC into AD? Okay, सुनना बहुत interesting part आएगा. Tell me now, what is the value of BC? Okay. What is the value of AD? Not given. So can I write only this much? This is what I get. Listen to this. अभी आपने क्या बोला सर, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इतना मिला. ओके, बट आप बोल रहे हो सर मुझे तो एरिया चाहिए एबीसी अपॉन 4r. नाउ look at this, look at what you got. You said you got right now a into AD upon 2. Is this clear? This is what you got. And look at what you want. Okay, compare करो. आपको ये मिला है बट आपको ABC चाहिए, तो आप बोलोगे सर A चाहिए, वो तो है इधर, A जो चाहिए वो तो है. ओके, आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में मुझे 4r चाहिए बट मेरे पास तो 2r है, तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या मिसिंग है? यू वांट 4r. सो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा तो 4r आएगा. ओके, दैट मींस आर यू सेइंग दैट डिनोमिनेटर में अगर मेरे को 2r मिला तो चलेगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, स्मार्ट 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 स्मार्ट, वेरी गुड. और एक मुझे ये बताओ, न्यूमरेटर में मेरे पास AD है बट मुझे क्या चाहिए? BC, करेक्ट है? सो दैट मींस आर यू सेइंग राइट नाउ मुझे इस 2 प्रूफ में ये जो मुझे मिला है उसमें BC अपॉन 2r मिसिंग है, बट वो BC अपॉन 2r मुझे लाना है AD के जगह पे. डू यू एग्री विद दिस? बिकॉज इन दोनों को तो मुझे रखना है. A हैज टू रिमेन, 2 हैज टू रिमेन. ओनली थिंग इज आई नीड टू रिमूव AD, और AD के जगह पे मुझे BC अपॉन 2r लाना है. मतलब इन शॉर्ट आई एम सेइंग अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी शुड गेट द वैल्यू ऑफ AD. हमें AD का वैल्यू चाहिए BC अपॉन 2r. इज दिस क्लियर टू यू? If I can get that, I'm getting the proof. It's done. Okay, आप बोलोगे सर अभी AD का वैल्यू लाए कैसा? अभी ये इंटरेस्टिंग है. चलो इसके लिए भी मैं आपको हिंट देता हूं, आप खुद सोचो, आपको मिल जाएगा. टेल मी राइट नाउ, हमने जो फर्स्ट 2 प्रूव किया, इसमें 2 ट्राइंगल्स को प्रूव किया सिमिलर. नो 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 बेटा 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 दियन, डोंट गेट इनटू दैट बिकॉज आई डोंट वांट एरियाज. ओके, लिसन लिसन, आई जस्ट गिव यू अ हिंट. सुनो, डिड वी जस्ट प्रूव दिस 2 ट्राइंगल्स सिमिलर? Okay, we are interested in only getting AD and Dhyan. Why I'm saying that don't get into area? Because मुझे सिर्फ AD पे इंटरेस्ट है. सुनो ध्यान से. Now when 2 triangles are similar, ये दोनों ट्राइंगल में AD इधर है कि नहीं? AD. Yes. Tell me, when 2 triangles are similar, what do you know about their sides? Corresponding sides के बारे में आपने क्या सीखा है? Very good. Hansel is saying sir ratios are equal. अरे तो वो यूज करते हैं ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियोज यूज करते तो मुझे AD मिलेगा. चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूं देखना, फर्स्ट 2 प्रूफ को यूज कर रहा हूं. तो मैं बोल रहा हूं अगर रेशियोज इक्वल है तो कैन आई टेक द रेशियो? रेशियो कौन सा आएगा? AB अपॉन AD. दिस रेशियो कैन आई से इट इज इक्वल टू AX अपॉन AC? एग्रीड? मुझे अभी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. टेल मी इन दिस रेशियो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? ओके, C लिखा मैंने. चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? Okay, keep it as it is. What is the value of AX? AX. Why? Superb. So can I write it as 2R? Now tell me what is the value of AC? B. So now solve this equation and tell me from this what is the value of AD? Superb. So you end up getting the value of AD as BC upon 2R. Now this value you can just pick up and substitute here. Can you do that in the first statement? And when you do that, see what you get. So when you do that, what are you getting? Area of triangle ABC is equal to A upon 2. ऐसे ही है. AD के जगह पे आप लिख रहे हो BC upon 2R. Now just multiply the numerator, multiply the denominator. Check करो क्या मिल रहा है आपको. It is ABC upon 2 into 2, that is 4R. Did you get that? And your proof is over. Yes, from 1 and 2 you got the proof and your proof is over. Now wasn't this easy? Beautiful sum. So this was so interesting. Now मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं. So एक चीज सबसे क्रिटिकल है, आप जब भी सोच रहे हो, यहां पे सोचना क्या इंपॉर्टेंट था पहले आपने फाइंड कर लिया, फिर आपको एनालाइज करना है अरे मुझे क्या मिला और मुझे क्या प्रूफ करना है, तो कंपेयर करो.
सो फ्रॉम दैट वी रियलाइज कि मुझे किसी भी तरीके से एडी का वैल्यू वी नीड टू गेट इट एज बीसी अपॉन 2r, ट्राई गेटिंग दैट। तो वो कहां से मिलेगा? तो मैंने देखा एडी तो इधर है, अभी हमने प्रूफ किया, तो उसको यूज करो, यूज दैट इंफॉर्मेशन एंड यू गेट इट डन। So I'll just show you the entire proof once again so that you get you can take a screenshot of the entire solution. Okay, so that's the first part. Take that. Going on to the next slide. Okay, I'll show you the next slide. That's the next one. Done. Okay, now going on to the next one. This is the next one. You do that, you end up getting the value of AD as BC upon 2R. Take that. And coming on to the last one where you actually substitute that. And when you substitute that, this is what you're getting at the end. Check. So अभी मुझे सिर्फ इतना बताओ, are you able to understand the thought process? That's it. Easy है. I call such sums as beautiful sums. Yes, sir. Very beautiful and simple. Because that's what I used to because that is what I speak in the video also. So because क्या होता है, हाँ बोलो इब्राहिम क्या हाँ वो मैं जनरली यूज करता हूँ क्लासरूम में भी पढ़ाते समय एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज डू. मुझे ये सम्स ना, सी व्हाट आई ऑलवेज वांट फ्रॉम यू इज, एंड मैं हमेशा चाहता हूँ, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ऑलवेज ट्राइड इन द वीडियोस टू डू. हम कभी भी आपको आंसर्स नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि आप सोचो. यू नो व्हाट इज एक्साइटिंग व्हेन यू गेट द आंसर्स, इट इज नॉट एक्साइटिंग व्हेन वी गिव यू द आंसर्स. बच्चा खुश कभी होता है और बच्चे को अच्छा कभी लगता है और एक्साइटमेंट कभी जागता है जब भी उसको खुद आंसर्स मिलने लगे, वो खुद सोचे. So that is what we are always trying to do. So if you get that, then the game is done. You are getting it very easily. चलो कुछ और एक सम दिखाता हूं. ये similarity topic का, this is from similarity topic and this is something which had come in the boards earlier also, and it's not that difficult but a very simple one. You should be very much used to this question. Check करो. और ये काफी बार ना बहुत सारे स्कूल्स में पूछा जाता है. Many a time schools ask this. Proof में पूछा जाता है most of the times. There are many schools which would have asked this in the either in the semesters or the unit test or at the prelim. हमेशा पूछा जाता है. Okay, yeah, get me back, Ujjay. Yeah. Tell me, which type of quadrilateral are we talking about? No. It's a trapezium. It's a trapezium because only one pair of opposite is parallel. Check करो. So what it says is we have a quadrilateral. और अगर आपको याद है, आपने क्लास में भी सीखा होगा, मैंने वीडियोस में भी बार बार बोला है, कभी भी याद रखना, अगर कोई ट्रपीजियम का सम आता है, सोचना ही नहीं है आपको. सिमिलरिटी से रिलेटेड आया ना, सोचो मत, हमेशा याद रखो, एक चीज करना ही करना है आपको. ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, लेट्स से दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, राइट. सो आपको ये ट्राइंगल AQD और ट्राइंगल CQB को सिमिलर प्रूफ करना है. टेक्स्ट बुक में ही ऐसे दो सम्स हैं और उसमें मैंने जब भी सिखाया तभी मैंने बोला है, द मोमेंट यू हैव ट्राइंगल्स वेयर यू हैव अ ट्रपीजियम, ऑलवेज रिमेंबर, प्रूव द ट्राइंगल्स कंटेनिंग द पैरेलल साइड्स. आई रिपीट, प्रूव द ट्राइंगल्स कंटेनिंग द पैरेलल साइड्स. जिसमें पैरेलल साइड्स है उसको आप प्रूफ कर लो सिमिलर. अभी मुझे इसको पैरेलल प्रूफ, सिमिलर प्रूफ करके बताओ. चलो कैसे आएगा? Yes, okay, you say D and B are alternate angles. What else? हाँ, आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लो, दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट से सिमिलर हुआ? ओके, बट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं, ट्राइंगल, अगर मैंने फर्स्ट ट्राइंगल का नाम मैंने AQD लिखा है, मुझे बताओ दूसरा ट्राइंगल जो इसको सिमिलर है उसका नाम क्या है? हाँ, बी केयरफुल अबाउट द करस्पॉन्डेंस, डोंट मेस विद दैट. आपको पता है डी किसको कॉन्ग्रुएंट है? बी. तो डी के सामने बी आना चाहिए, क्यू के सामने क्यू, ए के सामने आएगा सी. दैट मींस द नेम ऑफ द अदर ट्राइंगल शुड बी CQB एज पर द करस्पॉन्डेंस. डोंट मिस आउट दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट. चलो इतना समझ में आया? तो आप बोलोगे सर ये तो करना ही है, मतलब वो स्टेप्स सोचो ही मत, आपको करना ही करना है. ओके,
तो आप उतना करोगे, देखो आप पहले एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखोगे, फिर आप उसको 1 मार्क करोगे, फिर आप बोलोगे सर हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं, जो अभी आपने बोला वही करेंगे। देखो इधर तक पहुंच गए, एकदम इजी। सो नियरली हाफ ऑफ योर सम इज ओवर इससे। अभी सुनो प्रूफ में पूछा क्या था। दे सेड यू वांट db, sorry, you want dq to be half of bq. Okay, you want dq to be half of bq. हाँ, मतलब अगर इसको आप सोचोगे तो अभी जैसे who said, Ibrahim, you said ना? Okay, Asjad. So that means you are saying that dq upon bq, when I say this, in other words you are saying that sir हमें dq upon bq का रेशियो 1/2 चाहिए। Agreed? That means आप बोल रहे हो सर dq इस ट्राइंगल में है, bq इस ट्राइंगल में। तो चलो अभी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर में ले, so can we take the ratios equal? So tell me which all ratios should I take equal? Tell me that. dq upon bq तो लेना ही है because okay, और कौन सा लूं? हाँ, तो समझो मैं AQ अपॉन QC लूंगा, तो मेरा क्वेश्चन है आपको क्यों लूं? आप बोलोगे सर देखो ना गिवन में AQ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया इसलिए ले रहा हूं, समझो ये। So understand the reason why are you taking this ratio. Don't just take it blindly because I have said it or it is given in the solution. समझ के लिखो। तो आपने वो लिखा, okay, done. Now the next point is, या उजय, उधर देखना एक मैसेज आया, कैन यू टेक इन प्लीज आदिति, शी इज इन द मीटिंग रूम, शी हैज टू एंटर। किया? हाँ, जस्ट अ मोमेंट है बेटा। उजय लिया? हाँ, थैंक यू। या नाउ इफ यू गो टू दिस वन, नाउ टेल मी, यू सेड सर इतना तो मिल गया, मुझे ये बताओ हमें dq अपॉन bq कितना चाहिए? वेरी गुड, बट राइट नाउ dq अपॉन bq किसको इक्वल है? सुपर्ब, क्या बात है, वेरी गुड, सुपर्ब। तो आप बोल रहे हो सर मुझे AQ अपॉन CQ हाफ चाहिए। ओके, AQ अपॉन CQ हाफ चाहिए, सो लेट्स गो इनटू दैट AQ अपॉन CQ। ओके, बट AQ CQ किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है? Okay, I'll just write what Suhan is saying. Suhan क्या बोल रहा है वो लिख लेता हूं। Suhan बोल रहा है सर AQ is equal to 1/3 of AC दिया है, तो क्या लूं मैं? What do I do? वेरी गुड, 3AQ is equal to 1 AC, परफेक्ट है, लिख लिया। चलो, यस Suhan, परफेक्ट है, यस। ओके, सुपर्ब। हाँ, बट अभी ये क्यों कर रहे हैं वो समझो। सुहान ने जो बोल रहा है वो सब सही है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हमें किसी भी तरीके से AQ अपन CQ चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसमें AQ और AC है, मुझे AC नहीं चाहिए, AC को हटाना है। अगर कोई चीज को हटाना है तो उसका पहला वैल्यू ढूंढो। व्हाट इज AC? व्हाट इज AC इन द फिगर? नो, इट इज बेटा श्रुति, इट इज नॉट हाफ, it is not half because Q is not the midpoint, beta. Q is not the midpoint. You will just say that it is AQ plus QC. Yes, so just write it as AQ plus QC. आ गया? So we got it as AQ plus QC, right? Okay, now Ujay, screen. हाँ, AQ plus QC. So now tell me, can I shift that AQ onto the other side? So what do I get? 3AQ minus AQ is equal to QC. Correct? So what do I get? 2 times AQ is equal to QC. Now when I get 2 times AQ is equal to QC, now from this, do I get that ratio which I want? So AQ upon QC equal to Yes, you got AQ upon QC is equal to half. And because you got this value as half, just pick this up and substitute that is in your statement number 2. You get the proof. That means you are saying, sir, now I can just write DQ upon BQ is equal to half. That means in other words, we are saying that DQ is half of BQ. And you got the proof. And that's a very, very simple one. That's how you get it. Yes? Was it simple? Yes, sir. And it's a very Yes, sir. Right. and it's a very important one, because most of the times you will see schools asking it. Yeah, Ujay, just I'll just show you from the start so that you take a screenshot of it. So that's the first slide. Do that.
Moving on to the next one, second slide. That's the second slide. So take that second slide. Moving on to the next one, the third slide. That's the third. Done? Yes. And moving on to the First slide. huh? Last. First slide, sir. Okay, you want the first? I'll just come on to that all the slides once again. This is the fourth. I'll just show you first again. That's the first. Done? Yes. Okay, Aditi, this is the second one, Aditi. I'm taking all the slides again. Huh? That's the second one. Then moving on to the third one, that's the third. And moving on to one more, the last slide, where you have this. This is the last slide, where we finish with the proof. Done? Yeah. Okay, okay. I'm taking another one. Now this is very important. This is actually from the old portion. When I say old portion means I mean to say the portion before your, okay, the syllabus which was there before y'all. Okay, उसमें जो था ना, and this happens to be a very important sum. उस portion में भी बहुत important sum था ये. So please take a screenshot of this. Ujay, so please take a screenshot of this. Very important sum. And which is this kind of sum can always be asked. It's not that difficult also. Okay, done? Yeah. Area of the bigger triangle is half of area of small triangle. Ibrahim, you're correct, beta. Very nice. Well, that is the first part what you get. Yes, Ujay, bring me back now on the screen. Yeah. So what Ibrahim said is correct. Okay, सब लोग पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो ना, क्या दिया वो देख लो. Just see in the figure you have XY parallel to AC, so you have these two lines to be parallel. Okay, and it says that XY actually divides this triangle ABC into two equal areas. Means you are saying that area of this part, area of this quadrilateral, and area of this triangle, they are actually equal. That is what they say. Okay, that is given. Area of this quadrilateral and area of this triangle is equal. Yes. We have to prove them similar or Okay, you are asking a question, Suhan, that do we need to prove them similar? yes, sir. Okay, okay. अभी इसको सिमिलर प्रूफ करना है नहीं करना है, इसका थॉट प्रोसेस डालते हैं. चलो इसके बारे में सोचते हैं, बिकॉज आपको समझना है ना, बाय हार्ट नहीं करना है, आपको समझ के. मेरे हिसाब से करना होगा, क्योंकि अगर रेशियो चाहिए तो वो दोनों रेशियोज को इक्वल आना है तो करना चाहिए. हाँ, और एक चीज क्यों करना चाहिए मालूम है सुहान? आई टेल यू, बिकॉज व्हाट यू वांट इज, चेक ऑन व्हाट यू वांट ax अपॉन ab. अभी आप चेक करोगे, अगर ab जो है, ab बिलोंग्स टू विच ट्राइंगल? बिगर ट्राइंगल. इट बिलोंग्स टू द बिगर ट्राइंगल, राइट है. अभी आप बोलोगे ax तो वो क्वाड्रिलेटरल को बिलोंग करता है. अरे बट मुझे बताओ, ax जो है, ab अगर पता है और अगर मुझे x भी मिला तो मुझे ax मिलेगा कि नहीं? सो दैट्स द थॉट प्रोसेस. बट उसके अलावा मैं आपको और एक रीजन देता हूं. सुहान, आपका जो क्वेश्चन था ना, वो क्यों करना चाहिए, चलो और एक हिंट देता हूं. सुनो, हमेशा याद रखना, ये हमेशा आप एग्जाम्स में काम आएगा. Always remember, in any triangle na, in any triangle when you have a line parallel to a side, there are two options you always have. You can either go for basic proportionality theorem or you can prove the two triangles similar. Do you agree with me? Yes, sir. सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में. फिर से सुनो. The moment you have a line parallel to a side in any triangle, you always have two options. You always can prove the two triangles similar by BPT, or you can prove the two triangles similar. When I say two triangles, I'm talking about the smaller and the bigger one. Tell me, can you prove two triangles similar? Yes, sir. Simple. Corresponding angle आएगा, खत्म. By A test. तो आप बोलोगे सर वो तो हमें पता है, given है. Very good. और आप बोलोगे सर वो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पे चेक करो, सम में are we talking about areas? Yes, sir. And So we have to go for a ratio of equal areas.
So we have to prove them similar first. सुपर अजद, यही थॉट प्रोसेस है. दैट मीन्स हम क्यों कर रहे हैं वो समझो. बिकॉज आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप बोलोगे सर मैं बीपीटी भी यूज कर सकता हूं, मैं सिमिलर भी यूज कर सकता हूं. अरे बट सम का गिवन में देखो ना, गिवन में दे आर टॉकिंग अबाउट एरियाज. तो अगर एरियाज की बात कर रहे हैं तो हमें सिमिलर ट्राइंगल्स मिला तो काम आएगा ना, बिकॉज देन आई कैन यूज अ थियरम, दैट इज थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट इज इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है. ओके सुहान, so I was just telling, so that is what Asjad explained. Asjad ने बरोबर बोला. Okay, so your thought is very clear. Okay, tell me, अगर ये दोनों ये सिमिलर, इन दोनों का एरिया इक्वल है, so can I say area of the smaller triangle is half the area of the bigger triangle? Yes, sir. Okay, तो ये चीज मुझे सबसे पहला मिलेगा. तो what I will do is sir, I'll say हमें ये पता चला कि अगर ये दोनों सेम है तो मैं बोल सकता हूं कि छोटा ट्राइंगल का एरिया बड़े ट्राइंगल का एरिया का हाफ है. इतना लिख सकता हूं. In other words, can I say उनका रेशियो इज हाफ? Yes, sir. और हमें जो दो ट्राइंगल्स मिले, दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो मिला, तो आप बोलोगे सर आपने जो अभी बोला ना वो एप्लीकेबल है, बिकॉज अगर हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करें तो हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ये थियरम यूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू जस्ट प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर, एंड दैट यू नो, यू विल से सर वो तो हमें पता है बिकॉज हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिलेगा. And then you have the common angle. You will say, sir, both the triangles are similar to each other by a test of similarity. This was the easiest thing which you could have done. Now tell me, any doubts up to this? सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके. नाउ आगे का पार्ट देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आगे हम इसको प्रोसीड कैसे करते हैं, बिकॉज इधर जाके सब लोग अटकते हैं. ओके, मुझे बताओ मैंने सिमिलर क्यों प्रूव किया? व्हाई डिड आई डू दैट? Very, हाँ मतलब हाँ सुपर. दैट मींस यू आर सही. तुमने बोला सर हमें वो थियरम यूज करना है. चलो अगर मैं वो थियरम यूज करूं, सो विल आई से एरिया ऑफ ट्रायंगल BYX अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू, टेल मी व्हिच साइड शुड आई टेक, व्हिच साइड अपॉन व्हिच साइड, स्क्वायर्स कौन सा साइड्स का लूं? हाँ AB लूंगा. AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है बताओ? BX. Very good. So can I write here the next step that I will write, sir, area of triangle BYX upon area of triangle BCA is equal to, it is BX square upon AB square. Is this clear? Yes, sir. Okay, क्यों लिया वो समझो. तो आपने बोला सर हमने ले लिया बिकॉज हमने ये थियरम अप्लाई किया. और क्यों लिया? बिकॉज हमें ये रेशो चाहिए. अरे बट आप बोलोगे सर मुझे तो स्क्वायर्स नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर्स हटाना है. ओके, पर सबसे पहले एरिया का रेशो कितना है? हाफ. कैन आई सबस्टिट्यूट हाफ हियर? लिखा. सो नाउ टेल मी, बिकॉज यू आर सेइंग सर आई डोंट वांट स्क्वायर, सो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूं? Taking square root. वेरी गुड. सो इफ आई टेक स्क्वायर रूट, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1? 1. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2? Root 2. सो डू आई गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 1 upon root 2? एंड ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू आई गेट? XB upon AB upon AB. हाँ अभी सुनो, अभी कम्स अ पॉइंट. हाँ नहीं बेटा वो मत कर. हाँ AX करेंगे. नहीं अभी सुनना. हाँ XB को ऐसा करके कर सकते हैं, बट मैं एक बात बोलूं, We can take common multiple. मैं उसी पे आ रहा हूं अजद. मैं आपको यही तरीका बताता हूं. ऐसे आप ना इन्वर्टेंडो करके वो AB माइनस AX करके भी मत करो. इजी तरीका बताता हूं जो अभी अजद ने बोला वो अच्छा है. ऑलवेज गो फॉर दैट. टेल मी, मुझे दो चीज का रेशियो पता है. अगर मुझे रेशियो और आप क्या बोल रहे हो मुझे AX अपॉन AB चाहिए, तो आप बोलोगे सर AX का वैल्यू तो फाइंड करते हैं पहले. तो ठीक है फाइंड करते हैं. टेल मी वन थिंग, you have the ratio. When you have ratios and you want actual value, do you take always common multiple? Yes, sir. So can I write let the common multiple be x? अगर कॉमन मल्टीपल x है, मुझे बताओ XB का वैल्यू कितना है? Sir, x and A- 8 का AB minus- root 2x. और AB का वैल्यू कितना है? Root 2x. root 2x. वेरी गुड है. सुनो अभी हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मुझे AB का वैल्यू चाहिए. तो आपने बोला वो तो है बेटा, वो हो गया. अभी मुझे सिर्फ AX का वैल्यू चाहिए. टेल मी AX का वैल्यू चाहिए, करेक्ट है ना? लुक एट द फिगर एंड टेल मी. AB minus XB. Superb. So let us write that. What you are saying, sir? You will say, sir, AB is nothing but it is AX plus XB. उसमें वैल्यू सबस्टिट्यूट करो. AB का वैल्यू है रूट 2x. AX का वैल्यू हमें नहीं पता है. XB का वैल्यू हमें पता है. तो अभी मुझे बताओ AX का वैल्यू कितना है? Root 2 minus x. root 2 minus. ओके X कॉमन ले सकते हैं. चलो x कॉमन ले लो. तो अगर मैंने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा? Root 2 minus 1.
Superb. Now tell me, have we got the value of Ax? Yes. Yes, sir. Do we have the value of AB? Yes. Now can I take the ratio which we want? Yes, sir. So I'll take now Ax upon AB. It's very simple. Ax का value है x into root 2 minus 1 और AB का value है root 2x. क्या cancel होगा? X cancel हो जाएगा. And your ratio is nothing but root 2 minus 1 upon root 2. You cannot simplify this further. Just keep it as it is. And that's the final answer. So you get the ratio. This happens to be a very, very, very important sum. Very important sum. मतलब ये पुराने पोर्शन में से है, previous syllabus में से, वहां पे भी it was very, very critical sum. So it's very critical for you. So please इसको, I'll just show you the entire solution right from the start, entire proof, okay, right from the first slide. So I'll just take you there. Just take this, take the screenshot. That's the first slide. Okay. I'll go on to the next second slide. That's the second one. And then going on to the third slide. That's the third slide where we found the values. And then the last where we actually take the ratio. मतलब ये हो ही गया है, हमें इसके बाद सिर्फ रेशियो लेना है और जो यहाँ हमने यहाँ पे किया. This is what we have done here. Nice, easy. Okay. There is one more. There's another sum. Now I'm just going into. I'm taking a sum from theorem of Pythagoras. That topic, and this is again a very important sum. This was not there in the previous syllabus, but ये उससे पहले के syllabus में से था. But this is beautiful. I don't know if you have come across this sum ever. Just take a screenshot of this first. Yes, sir. Yes, sir. सर ये तो सबसे इजी सम है. हाँ, but बहुत important sum है. पहले एंगल करेंगे. हाँ. सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. चलो अभी एक चीज है, ये करने से पहले, चलो ये सब आने से पहले मेरे को ना एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में बिठाना है. जस्ट लिसन टू दिस. आंसर मी. आई एम जस्ट आस्किंग यू फ्यू थिंग्स. उसको आंसर करना. सपोज आई गिव यू अ ट्रायंगल ABC. Okay, and this is a 90-degree angle. Okay, and I draw a perpendicular on the hypotenuse. Tell me, यहाँ पे इस ट्राइंगल में हम ये इस फिगर में हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं? Geometric mean and similarity of right angle. Very good. Okay, if I apply geometric mean corollary, what do I get? BD square is equal to AD into AC. AD into DC, correct? Yes, sir. Okay, that is correct. Okay, और एक चीज क्या अप्लाई कर सकते हो आप लोग ने बोला? Similarity of right angle triangle. Okay, if you have learnt it well, you know in similarity of right angle triangle, what is important is always just writing the names of the three triangles. You know that, right? Yes. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे तीनों ट्राइंगल्स का नाम करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना. नाउ टेल मी, वहां पे मैंने वीडियो में एक ट्रिक बताया हुआ था. एक ट्रिक मैंने बताया हुआ था. हाँ, पहले क्या लिखना? राइट द नेम ऑफ द बिगर ट्राइंगल विथ 90 डिग्री एंगल को बीच में रखना. तो मुझे पता बड़े ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC. आप उसको ABC लिखो या CBA लिखो, डजंट मैटर, बट एंगल 90 वाला बीच में रखना. तो मैंने इसको ABC लिखा. ठीक है. उसके बाद मैंने बोला था ट्रिक में याद रखना, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? यू हैव D. Take that D and place it between the first two letters. So if I place it between the first two letters, ADB. very good. That gives you the name of the second triangle. Okay. And BDC. Okay, that is ADB and the next one is BDC. Is this clear? ये मैंने ट्रिक सिखाया था. Whenever you're going to apply this, because this is very important. This gives you easily the correspondence. Okay. अभी मैं और एक चीज क्या समझाना चाहता हूँ. एक चीज याद रखना, कभी भी याद रखना, whenever you have this figure, right, such a figure, you learned an important thing. You learned that these three triangles are similar. इसी में से ये आता है, ये पता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. From this only you are able to get this. ये corollary है ना, ये theorem से ही आता है. theorem को corollary हो. Okay, but ये theorem से और एक corollary आता है जो हम सिखाते नहीं है. Okay, but वो ये सब में यूज करते हैं. वो corollary क्या मैं समझाता हूँ, सुनो. In this right angle triangle, from the vertex of the right, what is the vertex of the right angle here? B, right? Sir,
AB square is equal to AD into BC. हाँ Pythagoras. नहीं, मुझे बताओ बी से कौन से 3 सेगमेंट ओरिजिनेट होते हैं, कौन से 3 सेगमेंट निकलते हैं बी से? AB, AD और AC. BD and BC. ए बी बी डी एन बी सी, करेक्ट है। बीडी का स्क्वायर आपको इधर मिला, ऐसे ही जो ए बी मिला ना निकला उसका भी स्क्वायर मिलेगा, और वैसे ही बीसी का भी स्क्वायर मिलेगा। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा थ्योरम, ऐसा ट्राइंगल आएगा, वो वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से जो 3 सेगमेंट्स ओरिजिनेट होते हैं, आपको तीनों का स्क्वायर मिलेगा। बीडी स्क्वायर मिलेगा, दैट इज अ कोरोलरी व्हाट यू हैव लर्नड, बट यू विल आल्सो गेट एबी स्क्वायर, यू विल आल्सो गेट बीसी स्क्वायर, और ये दोनों भी आपको इसी थ्योरम से मिलेगा। बट मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, सो दैट ऐसा कभी भी अगर इन एनी सम यू रिक्वायर ना, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग वो कैसे आएगा। तो इसके लिए बताओ, सुनो, ए बी स्क्वायर कैसे आएगा, डायरेक्टली आना चाहिए। शॉर्टकट देता हूं, ए बी स्क्वायर के लिए सिर्फ याद रखना ए से स्टार्ट करो। टेल मी विच आर द 2 सेगमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऑन दिस साइड। AB and AC. AD and AC. हाइपोटेन्यूज पे कौन से हैं, ए से निकलने वाले 2 सेगमेंट्स? AD and AC. AD and AC, AC, करेक्ट है। सो यस, सो इट इज नथिंग बट AD into AC, खत्म। सेम वे अगर आपको BC स्क्वायर चाहिए, C पे आओ, टेल मी ऑन C, with C on the hypotenuse, which are the 2 segments? CD and AC. Yes, it is CD into, so this is nothing but it is AD AC into CD. This is what you need to understand. आपको ऐसा मिलेगा, and this is something which you have to always understand. In any sum like this, you will always end up getting the squares of all the 3 segments which are starting from B. ये ध्यान में रखना, और वो कैसे मिलता है वो भी याद रखना। हाँ, बट ये कैसे आएगा ये आपको थियरम से करना है। Now once you know this, this sum is just a cakewalk. Now you'll understand. Tell me, in this sum, do you have the angle bisector first? So since you have the angle bisector, can we apply property of angle bisector? Yes, sir. So tell me, if I apply property of angle bisector, which ratios do I get equal? PM upon PM upon MR is equal to PQ upon Q. Okay, PM upon MR is equal to PQ upon QR. लिख लिया मैंने, and let's say that's my property applied. But do you want PM upon MR or you want PM square upon MR square? square. तो square के लिए क्या करूं? So चलो squaring both sides करते. So if I square both the sides, what do I get? PM square upon MR square is equal to PQ square upon QR square. Is that clear? Yes, sir. Okay, so we will stop here as the result number 1, and you will say, sir, what we ended up getting is we got the left hand side. So okay, beautiful. Now you're just working on the right hand side. Huh? So you'll say, sir, right hand side अभी मुझे क्या चाहिए? Right hand side में मुझे PS upon SR चाहिए, but मुझे तो ये मिला, तो ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या करूं? इरेज कर दूं। अब नहीं ना, हमेशा इरेज नहीं, उसका वैल्यू ढूंढते हो। मतलब आप बोल रहे हो सर इसका वैल्यू मुझे इक्वल टू PS अपॉन SR मिलना चाहिए। अगर वो मिला देन आई एम डन। ओके, सो नाउ यू ऑलरेडी गॉट इट ना। मैंने अभी आपको शॉर्टकट सिखाया था, याद है? मुझे बताओ व्हाट इज PQ स्क्वायर इक्वल टू? अभी व्हेन यू हैव द परपेंडिकुलर, PM into PR. नो 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 नॉट दैट परपेंडिकुलर वाला, इसको मत देखना। PS into SR. हाँ, PS इंटू PR. हाँ, PS इंटू PR है। और मुझे ये बताओ QR स्क्वायर का वैल्यू क्या है? RS। हाँ, सुपर। अभी यही वैल्यू आपको मिलेगा, बट आप बोलोगे सर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते बिकॉज इसको ऐसा कोरोलरी नहीं दिया है, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करोगे? बाय यूजिंग द ट्राइंगल सिमिलर। हाँ, आप वो यूज करोगे। आप पहले लिखोगे सर तीनों ट्राइंगल सिमिलर है। अभी इसमें से हमें क्या चाहिए? आप बोलोगे सर मुझे PQ स्क्वायर चाहिए, तो PQ स्क्वायर के लिए PQ वाले दोनों ट्राइंगल कंसिडर करो। यस, तो वो दोनों ट्राइंगल्स ले लिया। उसमें से आप बोलोगे सर मुझे PQ के स्क्वायर चाहिए, तो PQ 2 बार लो, तो PQ के रेशियो ले लो। PQ upon PS हाँ, and PR upon PQ. PQ, ब्यूटीफुल। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। PQ square PS into PR. हाँ, तो चेक करो अभी वही मिला कि नहीं। It is PS into PR. This is what we got, right? Let's say that's my. Now you'll say, sir, second तो मिलेगा ना, QR square भी मिलेगा। चलो उसके लिए दूसरे 2 triangles ले लो। Now again you will say the ratios are equal. QR वाले ले लो, and now you cross multiply. You will get QR square is equal to PR into SR, and you got that. Now you have to just substitute this values there, and when you substitute there, what do you get? Check करो. Yes, PR and PR gets cancelled, and you end up getting the proof. Super one, and you got it. बट ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, वेरी इंपॉर्टेंट, a very important, a very likely sum which can be asked, that kind of sum,
Very frequently it could have been asked. Matlab, I don't know whether it's been asked for you in your exams, but this is a very very important sum which can be asked. Easy है. बट मैंने जो आपको बोला वो कोरोलरी जैसा वो याद रखना, बिकॉज अगर कहीं सम में अगर ऐसा है, इस सम के अलावा कुछ और आया, एंड देन यू आर एबल टू थिंक, सो यू आर एबल टू थिंक अबाउट इट फास्ट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So I'll just show you the right from the start. So just take a screenshot of that, the first slide. Then I'll show you the next one. That's the next one. That's the second slide. Done? Okay. चलो, there's one more interesting one. ये देखना, बहुत मस्त है. ये भी शायद देखा होगा. This was there in the last syllabus. Yes, sir. Yes, sir. याद है? Theorem of geometric mean 2 बार. Yes, superb. Okay, but आप ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ सर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा. Okay. तो df और d. हाँ, वैसा भी सोच सकते हो, या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो. देखो यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, आपको AE इंटू EB चाहिए कि नहीं? तो चेक करो, इफ यू वांट AE इंटू EB, दैट शुड गिव यू अ हिंट. चेक करना. If I want AE into EB, from where do I get that? Can I get into this triangle ADE? Sorry, ADB. इस triangle में can we apply geometric mean corollary? Yes, sir. तो अगर हम वो अप्लाई करें तो देखो वही स्टेप्स लिख रहे हैं. तो अगर हम अप्लाई करें तो हमें DE square is equal to AE into EB मिलेगा, which will be our result number 1. Easy. Same way you'll say, sir, we want AF into FC. AF into FC के लिए सेम चीज करोगे. So that means again you will take the same corollary, but you will take that in triangle ADC now. Check. So in triangle ADC you'll do that. And now in triangle ADC when you do that, what do you get? Check karo. DF square is equal to AF into FC, and you got this. Now you check. When you look at the two proof, you are saying, sir, we want AE into EB and AF into FC ka multiplication. That means in other words, can I just multiply 1 and 2? Yes, sir. So if I multiply left 1 and 2, that means I'm multiplying the left hand side, multiplying the right hand side. Check karo. And when I do that, what do I get is, you got this, but you said, sir, we want the square root. So I remove the square, so I take square root on both sides, so I get D into DF is equal to actually root of, under root of A into EB into AF into FC. ऐसा मिला? So आपका left hand side check करो. Your left hand side is set. Your left hand side matches exactly now. Only thing is you want to focus on the right hand side. You don't want this, you just need to get area of quadrilateral. ADF. Look at that quadrilateral and tell me what type of quadrilateral is that AEDF? Rectangle. Okay, but why is it a rectangle? Because all of the angles are 90. Ah, 3 angles are 90, so I'll get the fourth angle to be 90. Okay, so what you're saying there is, next you will consider that quadrilateral rather, not the triangle there. Okay, so only that AEDF, and you will say, sir, वहाँ पे 3 angles 90 है, तो हम बोलेंगे sir हमारा fourth angle जो है वो भी 90 होगा. Okay, and that means you will say, in other words, you will say that therefore this quadrilateral happens to be a rectangle by definition. And if it is a rectangle, you can just say, if it is a rectangle, then the area of that can be nothing but length into breadth, which is nothing but D into DF, which can be written, and you substitute that particular part there, and you end up getting the proof. It is a very small one, it's not that difficult. Was it easy? Yes. I'll just take you to the proof. Okay, just take this, Ujay. So that's the first slide. Okay, I'll take you to the next now after this. Okay, that's the second. Okay. Done? Yes, sir. Chalo, let's come on to another one. Now these are some things which are very nice ones. Okay, few sums which I wanted to discuss with you very importantly.
This you should have come across and you should have done this. Check. This is from trigonometry. Take a screenshot, I'll discuss. Yeah. Okay, yeah, Ujjay, get me back. Now ये डिस्कस करते हैं, ये आपको करना है. ये सम है ना. अभी ये सम आप लोग मेरे साथ फटाफट मुझे बताना कैसे करोगे. मुझे बताओ. Okay, first of all, do you like to prove sums of trigonometry? Yes. Yes, sir. Yes, sir. You know, they are the most interesting sums. You know why they are interesting? Because उसमें आप कभी wrong हो ही नहीं सकते हो. Because आपको पता है आप एक साइड प्रूव करके दूसरे साइड को ला रहे हो. That means you're not searching for an answer. You have the answer in front of you. You're just solving this to get this ना. कुछ नहीं है. और एक चीज जो हिंट देता हूं, कभी भी याद रखना, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जब भी टू प्रूफ सम्स कर रहा हूं वहां पे मैंने स्टार्ट के सम्स देखना, मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया. When you're doing any two proof sum, you are just using eight things, and I had explained there. You are using the three identities. Tell me the first identity, fatafat. First identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to One cos plus square cos square is equal to tan tan square square. is equal to One sec plus square. tan square is equal to sec square. Okay. So all the three you said sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Apart from these three identities, there are 5 relations. उसको याद रखना, relation between sin and cosec. याद है ना? Sin is 1 upon cosec. Sin is reciprocal of cosec. Yes, sin and cosec, they are reciprocals of each other. वो एक याद रखना. Second is same way cos and sec. Same way tan and cot. Tan and cot. ये तीन रेसिप्रोकल और दो. Sin upon cos. हाँ, tan is sin upon cos and cot is sin. Superb. That means मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, 5 रिलेशन एंड 3 आइडेंटिटी. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आपको इस टाइप के सम सॉल्व करने के लिए. ओके. और एक चीज, ये मैं जस्ट बेसिक डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज दैट विल हेल्प अस फॉर द डिस्कशन. मैंने वीडियोस में भी ये एक्सप्लेन किया, बोला भी है. मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मैं आई कॉल दिस टू रेशियोज एज बेसिक रेशियोज. I term them as basic ratios. I call them as primary ratios. इसको मैं basic ratios बोलता हूं. ओके, ये हमारा लैंग्वेज है, हमारे समझने के लिए है. ओके, इसको हम बेसिक रेशियोज या प्राइमरी रेशियोज बोल सकते हैं बिकॉज अगर साइन और कॉस नहीं, बिकॉज ऑल द अदर 4 कम्स फ्रॉम दिस. दैट मीन्स उन चारों को, दैट इज टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक को आई विल कॉल देम एज सेकेंडरी रेशियोज. व्हाट आर दे कॉल्ड एज? सो ये बेसिक या प्राइमरी बोलो और उनको सेकेंडरी बोलो. अभी ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से. तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के सम्स जब भी होते हैं तो आप पहले क्या कर सकते हो, आप पहले ऐसे साइड को सेलेक्ट कर लो जो बहुत डिफिकल्ट लगता है. मुझे बताओ ये दोनों में से कौन सा साइड आपको डिफिकल्ट दिख रहा है? तो चलो हम लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये पूरा सम आप करोगे, पूरा सम आप ही बोलने वाले हो और बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत ईजी है. अभी मुझे बताओ इस लेफ्ट हैंड साइड में अभी आप बोलोगे सर पहला ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट, मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूं क्या? फर्स्ट ब्रैकेट को, वो कौन से फॉर्म में है? सो यू विल से सर वो a plus b the whole square में, कैन आई टेक एक्सपैंड दैट? तो अगर मैं एक्सपैंड करूं तो मुझे आंसर बताओ क्या आएगा? Sin square a plus 2 tan sin a into cosec square a. 2 sin a into cosec a plus cosec square a. चलो आपने जो बोला वो मैंने लिख दिया. ठीक है, सी द सेकंड ब्रैकेट एंड इज इट द सेम? चलो उसको भी एक्सपैंड करते हैं. सो यू विल गेट इट एज cos square a plus 2 into cos a into sec a plus sec square a. ओके, सुपर. इधर तक कर दिया. सुनो. ओके, नाउ एक चीज याद रखना. टेल मी, यू आर सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड टू गेट व्हाट? हाँ, तो हमेशा याद रखना राइट हैंड साइड को भूलना मत. राइट हैंड साइड को देखते रहना बिकॉज मुझे वो लाना है. तो राइट हैंड साइड में मुझे 7 चाहिए, 7 भी लाना है, tan लाना है, cot लाना है. ओके, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर चाहिए. अभी जैसे ही tan स्क्वायर cot स्क्वायर दिखा ना, तो आपको याद रखना चाहिए, अरे tan स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर है, उससे मेरे को tan स्क्वायर आ सकता है, आइडेंटिटी. cot स्क्वायर मतलब मेरे को cosec स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, है ना, मतलब साइन और कोसेक को रेसिप्रोकल लेके कट होएगा तो हाँ. नहीं, पहला चीज तो इसको मुझे बाजू में रखना है, वो याद रखना. ओके, और कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होता है कि चेक करो. साइन और कोसेक कैंसिल होगा, कॉस और सेक कैंसिल होगा और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आता है. ये कैंसिल किधर होएगा? साइन
हाँ 1 होएगा तो into sec a 1 होएगा। तो उसको मैं साथ में ले sin लेता हूँ। square a plus cos square a 1 होएगा। ओके मैं इसको 1 ले लेता हूँ। और आप क्या बोल रहे हो? ओके मुझे बताओ 2 sin a into cosec a क्या है? रेसिप्रोकल सर 2 होगा उसका आंसर। हाँ उसका आंसर 2 होगा। ओके उसको लिखने के डायरेक्टली मैं डायरेक्टली sin a into cosec a को 1 भी लिख सकता हूँ बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। या तो आप बोलोगे सर स्टेप लिख के बताते तो स्टेप भी लिख सकते हो। आप cosec a को 1 upon sin a लिख सकते हो, यस सर। लिख सकते हो। सेम वे इसमें देखो इधर इसमें 2 cos a into sec a है उसमें। ओके वेरी गुड। अभी इन दोनों को मैं बाजू में रख रहा हूं। कोसेक स्क्वायर ए को अलग से रख रहा हूं, सेक स्क्वायर ए को अलग से रख रहा हूं, उसको बाद में टैकल करेंगे। अभी मुझे यहां पे बताओ साइन ए कैंसिल होगा, Yes, sir. कॉसे कॉसे अभी मुझे बताओ क्या क्या बचा है। फर्स्ट में बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना है? प्लस 1। ओके बाद में क्या बचा? 2। ओके व्हाट एल्स? अगेन 2। ओके देन व्हाट यू हैव इज नाउ ओके 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ? ओके 5 तो आ गया। अभी मुझे बताओ मेरे पास कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। टेल मी डू यू वांट कोसेक स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड? नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर है? 1 upon sec square। Ah, 1 upon sin square। don't take that way. Plus tan square theta. 1 by tan सुवन सुवन मुझे क्या चाहिए उस पे ध्यान दे। मुझे राइट हैंड साइड में tan चाहिए और cot चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर से मैं आइडेंटिटी यूज करके कैन आई राइट इट एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। वेरी गुड तो लिखा मैंने। अभी मुझे बता सेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? 1 plus tan square. सुपर्ब। अभी चलो नेक्स्ट स्टेप। अभी मुझे बताओ चलो अभी सब कांस्टेंट्स को ऐड करो। 7 प्लस tan square a plus cot square a हो गया आपका राइट हैंड साइड एंड योर प्रूफ इज ओवर। इट्स सच अ सिंपल वन, इट्स सच अ सिंपल वन, सच एन इजी वन, सच अ सिंपल वन। मैं आपको वही बोलना चाहता हूं, सिर्फ आपका फोकस रहना चाहिए और सॉल्व करते समय राइट हैंड साइड को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, उसको भूलना मत। व्हाट यू वांट ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज इंपॉर्टेंट, उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे। ओके इजी है। So just take a screenshot of this. Ujay, just enlarge this. Yeah. Okay, I'll show you another one. Okay, I'll show you another one. उसका भी एक screenshot ले लो आप, उसके बाद मैं वो discuss करूँगा. Just take this. Write down this question. We'll discuss this now. So just take a screenshot of this. That's a beautiful one again. And believe me, that easy that you will solve it very fast. Very fast. बहुत easy है, मस्त है। चलो अभी कौन सा साइड सेलेक्ट करें? Left hand side. चलो लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है आप बताओगे। चलो अभी सिर्फ फर्स्ट जस्ट लुक एट द फर्स्ट ब्रैकेट नाउ, ओनली द फर्स्ट ब्रैकेट एंड टेल मी इन द फर्स्ट ब्रैकेट क्या सोच रहे हो आप, क्या कर सकते हो? ओके राज व्हाट यू सेड इज राइट, यू कैन कन्वर्ट दैट tan into sin and cos। वो ओके वो एक तरीका है। और कुछ सोच? सर एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि फिर 1 अप एलसीएम ले सकते हो और उससे आपको स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा तो सेक स्क्वायर आ सकता है। हाँ वो भी आ सकता है। चलो वो भी करेक्ट है। दो चीज मुझे मिले हैं अभी तक। एक जो स्टार्ट में दिया राज ने बोला और अभी सुहान ने बोला। दो ऑप्शन और कुछ हो सकता है क्या? सोचो और भी सोचो। चलो आई विल गिव यू वन मोर मौका। 1 upon tan. ए किस या राइट नाउ समबडी साइड क्या बोला वापस बोलो। सर 1 upon tan square cot square लिख सकते हैं। ओके अभी ये जरा सोचना ना। अभी इब्राहिम ने जो बोला ना वो सोचो ना। टेल मी वन थिंग, 1 upon tan का मतलब क्या होता है? कॉट। सो 1 upon tan square a का मतलब क्या है? मुझे बताओ ये सबसे इजी है कि नहीं? हाँ सर। क्यों मालूम है? इसमें आपका फ्रैक्शन निकल गया बिकॉज आपने फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर डाला ना डायरेक्टली। ओके तो ये सबसे इजी है। चलो इससे ट्राई करते हैं। मुझे बताओ जैसे इब्राहिम ने बोला सर आई विल राइट दैट 1 upon tan square as cot square है, मैं बोला लिख दे। तो अभी फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस cot square आया कि नहीं? इधर तो और इजी हो गया ना आपका। फर्स्ट एक आइडेंटिटी यूज कर लोगे आप डायरेक्टली। अभी इसके बेसिस पे अभी चलो सेकंड ब्रैकेट देखो। टेल मी द सेकंड ब्रैकेट। 1 plus tan. 1 upon cosec. 1 upon cot square a को क्या लिखोगे? Cosec square a. सर 1 upon tan square हाँ tan square है अजद। यस tan square आएगा। कैन आई राइट इट एज दिस? अभी आप फर्स्ट ब्रैकेट देखो एंड टेल मी व्हाट इज 1 plus cot square a?
cos x square है। cos x square डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर लिया, सुपर। चलो टेल मी व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर है? Superb. Okay, now wait, now you need to be थोड़ा आराम से. Tell me you're solving left hand side to get what? right hand side अभी सब लोग का ध्यान राइट हैंड साइड पे होना चाहिए. तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को कोसेक और सेक मिला, बट राइट हैंड साइड में तो मुझे सिर्फ साइन चाहिए. ओके, मतलब बेसिक रेशियो चाहिए कि नहीं? Yes, sir. टेल मी आप कोसेक स्क्वायर को बेसिक रेशियो में क्या लिखोगे? 1 upon sin सुपर. चलो मैं लिख देता हूं उसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर. आपने बोला 1 अपॉन साइन स्क्वायर है. मुझे बताओ सेक स्क्वायर ए को आप बेसिक रेशियो में क्या लिखोगे? cos square सुपर. चलो इतना लिख लिया. मुझे ये बताओ अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर में 1 into 1 गिव्स यू व्हाट? 1. ओके. डिनोमिनेटर में क्या है? इट इज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए. ओके. चलो अभी देखो काफी हद तक आप पहुंच गए. आपको न्यूमरेटर में 1 चाहिए था, मिल गया. अभी आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर. क्या बात है, सुपर. बिकॉज वो क्यों सोचा? बिकॉज मुझे साइन चाहिए, मुझे कॉस की जरूरत ही नहीं है. तो सुपर बोला आप लोग ने बोला सर हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे. चलो लिखता हूं मैं. अभी लिखा, देखो चेक करो. अभी क्या करूं? ब्रैकेट ओपन करो. चलो ब्रैकेट ओपन करो. सो व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट व्हाट डू आई गेट? 1 sin square a minus sin raised to 4a. Tell me, wasn't that easy? That's so simple to get. So easily you got it. मस्त था कि नहीं? मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, बिलीव मी दिस हैपेंस. ये जो टू प्रूफ सम्स होते हैं ना, कभी भी याद रखना एग्जाम में अगर टू प्रूफ सम्स आए ना, कभी भी मौका मत छोड़ना, ये सबसे पहले करना. बिकॉज ना इसमें ना स्टेप ज्यादा नहीं होते, फटाफट लिख के भी होता है. It doesn't consume too much time to write. It consumes less time. सबसे बेस्ट होता है. So if you are used to such things, you'll enjoy doing this kind of sums. बहुत अच्छा होता है. हमेशा आपको आया तो मौका मत छोड़ना, कभी भी ये टाइप के सम्स करना. Always important. Okay, just take a screenshot of this full solution first. Then I'm going to present a very beautiful one. एक बहुत मस्त सम है. Sir, this is of how many marks? This is something which can come for just 3 marks. It can be something which can come into question number 5 or it can come into question number 3 of yours. Question number 5 में आ सकता है ये, not in 4. But एक 4 का एक सम मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, बहुत मस्त है. इसके बाद done with this? Yes, sir. Okay, and now this is a beautiful one. और इसके ये सम पहला स्क्रीनशॉट ले लो, then we'll discuss. बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन पुट अ स्टार मार्क फॉर दिस सम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलो लेट्स डिस्कस दिस नाउ. लेट्स आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू. तुम आप लोग बताना, फिर मैं आपके हिसाब से सॉल्व करूंगा, ठीक है? व्हेन यू रीड द सम, मुझे बताओ किसका वैल्यू दिया है? हुज वैल्यू इज गिवन टू यू? Sec plus tan. theta plus tan हाँ, वो किसका वैल्यू है? p. P का. दैट मींस इन शॉर्ट आर यू सेइंग दैट P का वैल्यू दिया है? Yes, sir. ओके, सुनना ध्यान से. मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका समझना. P का वैल्यू दिया और बोला कि आपको ये प्रूफ करना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा. मुझे बताओ अगर मुझे P का वैल्यू दिया है और अगर मुझे ये प्रूफ करना है, तो आप कैसे सम को स्टार्ट करोगे? p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. वेरी गुड, सुपर्ब है. So, आप कहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हो? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड. मतलब आप बोलोगे सर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करूंगा और वहां पे P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. एग्री करते हो? Yes, sir. आपने बोला वही मैं लिख रहा हूं. सुनो, तो आपने बोला सर हम क्या करेंगे, पहले वो एक्सप्रेशन लेंगे, उसमें P के जगह पे मैं वो वैल्यू लिख दूंगा, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा उसका स्क्वायर. तो चलो मैं लिख देता हूं न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस टैन थीटा द होल स्क्वायर. -1 है ऊपर और नीचे सेम चीज है बट स्क्वायर प्लस 1 है. तो चलो कर दिया. अभी मुझे बताओ इसके बाद मैं क्या करूं? यस, चलो a प्लस बी द होल स्क्वायर ऊपर भी करने वाला और नीचे भी करने वाला. चलो उसको एक्सपैंड करो. तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, विल आई गेट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा -1. 1 ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ? चलो sec square Sec square theta minus 2 sec theta tan theta plus tan square theta plus 1. सुपर्ब. चलो वेरी नाइस.
अभी आप बोलो सर ये तो मैंने कर दिया, बट मुझे इसको सॉल्व करके, ये सबको सॉल्व करके क्या लाना है? Sin theta. अभी आप बोलोगे सर इतना बड़ा चीज मेरे सामने है, सबको सॉल्व करना है, सिर्फ एक ही चीज लाना है, दैट इज साइन थीटा। चैलेंज है ना, तो चलो अभी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। डिनोमिनेटर चेक करो ना, डिनोमिनेटर में कहीं पे आपको आइडेंटिटी कुछ दिख रहा है क्या? देखो, Tan square theta plus. सुपर्ब 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 सुपर्ब। आपने बोला सर नीचे दिख रहा है, मुझे डायरेक्टली मैं उसको सेक्स स्क्वायर थीटा लिखने वाला हूं। न्यूमरेटर में कहीं पे आपको दिख रहा है क्या डायरेक्टली? Sec square theta minus. हाँ 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 हाँ, वो बोल रहे हैं सर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस, मुझे बताओ सेक्स स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या है? Tan square theta. Tan square theta. हाँ, तो डिनोमिनेटर में इसके जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा लिखूंगा और न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे लिखूंगा। ये आपने बोला, मैं लिखता हूं। चलो अभी आपके हिसाब से मैं जस्ट उसको अरेंज कर रहा हूं। देखो, आपने बोला सर उसको हम tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, मैंने लिख दिया, और जो बचा है वो लिख रहा हूं, व्हाटएवर इज रिमेनिंग आई एम राइटिंग दैट। ओके, डिनोमिनेटर में आपने बोला सर ये जैसा है वैसे ही लिखूंगा, और जो इसके जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा लिखूंगा। चलो अभी आप न्यूमरेटर में चेक करो, कुछ सॉल्व कर सकते हो? 2 tan square theta. वेरी गुड, चलो मैं लिखता हूं 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट? 2 sec square theta. नहीं 2 sec थीटा tan थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 sec स्क्वायर थीटा। चलो चलो, ओके, अभी न्यूमरेटर में क्या करोगे? कुछ कॉमन है क्या? देखो, कॉमन ले ले टू। ओके इब्राहिम 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 2 और 2 tan theta. हाँ, चलो 2 tan थीटा कॉमन लेता हूं। 2 tan थीटा अगर मैंने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 1 tan square. tan बचेगा ना, tan प्लस सेक बचा। नीचे 2 sec. अभी डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? 2 सेक कॉमन है, 2 सेक कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 2 sec theta plus. सेक थीटा प्लस tan थीटा। अभी चेक करो आपका ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है कि नहीं? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ, 2 2 कैंसिल हुआ, तो tan अपॉन सेक मिला। बट आप बोलोगे सर मुझे साइन चाहिए, मतलब बेसिक चाहिए ना, तो चलो सबको बेसिक में लिखो। tan को बेसिक में क्या लिखोगे? Sin upon cos. सुपर, साइन अपॉन कॉस। अपॉन का मतलब है डिवीजन, डिवाइडेड बाय, और इन अदर वर्ड्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सेक है, उसको मैं डायरेक्टली कॉस लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. कॉस और कॉस कैंसिल हुआ, क्या बोला? Sin theta. And it's over. Now tell me, was this interesting? Yes, sir. इस सम को मैं और एक तरीके से प्रूव करूंगा। चलो चेक करते हैं। चलो पहले इसका प्रिंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल शो यू वन मोर मेथड ऑफ शोइंग डूइंग दिस सम, एंड दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग, वो भी करते हैं। हाँ, तो पहले ये ले लो। Yes, 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 Ibrahim. So just take this. This is the first. Then we go for the second. This is the second part. Okay. And now I would want, okay, so now I'll come back to you and I'll do this same sum in a different way. So let's discuss that. Now this also I want you only to answer. चलो अभी ये डिस्कस करते हैं आपके साथ। सुनना, इब्राहिम वाज सेइंग दैट, ओके, एक तरीका क्या था, और सब लोग वही करोगे, ज्यादातर आप लोग सब लोग वही करोगे जो आप सबने किया और मैंने उसको अप्रूव किया। व्हाट यू सेड वाज राइट। तो आपने बोला सर पी का वैल्यू दिया, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करें। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच स्ट्राइक्स यू, दैट्स राइट, एंड वी सॉ इट वाज इजी आल्सो, नथिंग ग्रेट। बट देयर इज वन मोर वे। वन मोर वे क्या है उनमें? आई कैन यूज अ गिवन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, सी हियर, आई एम राइटिंग द गिवन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी। ओके, टेल मी वन थिंग, मैं क्या करूंगा, इस गिवन को सॉल्व करके ये डायरेक्टली लाऊंगा, उस गिवन को सॉल्व करके मैं लाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। टेल मी इन द गिवन व्हाट इज sec थीटा, हाउ कैन आई राइट दिस इन बेसिक रेशियो? 1 upon cos. 1 upon cos theta. Okay, so I'll write this as 1 upon cos theta. Okay, tell me how will I write tan theta? Sin theta upon cos theta. Okay, you said sin theta upon cos theta, मैंने लिख दिया, that is equal to P. Tell me what should I do further? Why cross multiply? Denominators are same na? Add. So will I get 1 plus sin theta upon cos theta equal to P? इतना मिला? Yes, sir. But tell me, in the sum, am I interested in P or am I interested in P square? P square. We are going to both sides.
So I'm going to take square on both sides. So I'm going to do square on both sides. So can I write it as 1 plus sin theta the whole square upon cos square? ऐसा अलग करके पहले से लिखूं चलेगा? Tell me, is this correct? Yes, sir. मैंने स्क्वायर किया लेफ्ट हैंड साइड. ओके, यू विल से सर इन द सम मुझे साइन चाहिए ना, साइन ही चाहिए, करेक्ट है. इधर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, वो साइन में ही, उसको ऐसे ही रखो. टेल मी, मैं cos स्क्वायर थीटा, cos तो नहीं चाहिए मुझे, cos हटाना है तो क्या करूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना. चलो लिखता हूं, आपने बोला मैं लिखता हूं, सुनना. सो यू सेड सर हम लिखेंगे उसको 1 प्लस साइन थीटा तो होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर को उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा. चलो लिख दिया. अभी मुझे बताओ, ये डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो? डिनोमिनेटर को वेरी गुड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो उसका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. मतलब मतलब क्या आएगा, मतलब क्या लिखोगे? ओके, सो आई जस्ट राइट डाउन व्हाट यू सेड सर. तुम लोग ने बोला सर न्यूमरेटर तो सेम ही रखो सर. ओके, एंड डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन एंड दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर. चलो अभी इसमें से कुछ कैंसिल होता है क्या, चेक करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से. Yes, sir. 1 plus sin theta. हाँ, दैट एंटायर बाइनोमियल ना, बिकॉज न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो आपका डिनोमिनेटर में और ये कैंसिल होएगा, तो क्या बचा? 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta. ओके, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर मिला. टेल मी, पी स्क्वायर का मतलब इज इट पी स्क्वायर अपॉन 1? Yes. राइट ना. अभी सुनो, मुझे इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो. आई वॉन्ट पी स्क्वायर प्लस 1, आई वॉन्ट पी स्क्वायर माइनस 1. सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 1. मतलब मुझे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऐसा चाहिए. ओके, टेल मी. Component or dividend? दो रेशियोज इक्वल है तो मैं वो कर सकता हूं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो. Yes, sir. तो चलो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करो. मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं? 1 plus sin theta. हाँ, Sir, 1 plus sin theta. प्लस नहीं, प्लस, Plus 1 minus. हाँ प्लस प्लस लिख रहा हूँ ना. चलो मैं ब्रैकेट में लिख के बताता हूँ आपको. ओके, प्लस Upon और 1 plus sin theta minus 1 minus sin theta. हाँ, ओके, वेरी गुड, Equal to p square plus 1 upon p square minus 1. वेरी गुड. चलो लिख दिया. अभी मुझे बताओ, चलो न्यूमरेटर ऊपर सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को हम लोग ओपन करते हैं ब्रैकेट. तो वहां पे अगर मैं ओपन करूं तो आई गेट 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन, डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो जाएगा. सो आई गेट 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1. टेल मी, न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल होता है क्या, चेक करो. sin theta. ओके, प्लस, ओके, साइन थीटा, और नीचे प्लस 1 माइनस 1. सो व्हाट डू आई गेट? डू आई गेट 2 अपॉन 2 साइन थीटा is equal to p square plus 1 upon p square minus 1. Now 2 and 2 will get cancelled. So what do I get? I get 1 upon sin theta is equal to, yes, khatam ho gaya. Now can I just take invertendo? And if I take invertendo, do I get p square minus 1 upon p square plus 1 is equal to sin theta? Yes, yes. And this is the other way of doing it. ये यहां पे हमने गिवन को सॉल्व किया, गिवन को सॉल्व करके ये लेके आए. This is the other way of doing it. So you either do the first way or do the second way. Any ways you do, both are okay. अच्छा था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ना. ओके, आई विल शो यू अनदर वन. मस्त है. और एक और 2 प्रूफ सम है. ये 4 मार्क का सम है. दिस इज अ 4 मार्क सम. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दैट्स अ 4 मार्क सम. ओके, डन. ओके, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग में मुझे एक छोटा चीज पूछना है जो आपने अलजेब्रा में पढ़ा है. टेल मी, इफ आई वांट टू राइट b minus a in the form of a minus b, the equivalent of this,
b माइनस a को अगर मुझे a माइनस b फॉर्म में लिखना है तो उसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं? minus of a. हाँ, everybody knows this, right? What we always do is, because it is minus a plus b, so what we always do is we take minus common and then we get that. So that means अगर कभी भी b minus a को a minus b लिखना मैं लिख सकता हूं, only provided I take the minus sign common. ये clear है? ये याद रखना, okay? Now I'm coming on to this sum. चलो, this sum you can tell me, हाँ, फटाफट tell me which side am I selecting now? Left hand side. चलो अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, क्या करूं इसके साथ? वेरी गुड, पहले तो श्रुति ने बोल दिया उधर, श्रुति ने बोला सर पहले प्राइमरी रेशियोज में कन्वर्ट कर दो। अरे बट प्राइमरी रेशियोज में एक चीज और, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, इन अ फ्रैक्शन, आई हैव यूज्ड दिस स्टेटमेंट, आई ऑलवेज से इन अ फ्रैक्शन व्हेन यू हैव अ फ्रैक्शन, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, इन अ फ्रैक्शन व्हेन यू हैव अ फ्रैक्शन, अगर कोई भी फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन आए तो आप हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग बाजू बाजू में लिखना, ऑलवेज राइट इट हॉरिजॉन्टली, आई हैव यूज्ड द स्टेटमेंट, हॉरिजॉन्टली लिखना, वर्टिकली नहीं। ओके, वही चीज यहां पे करेंगे। टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल tan को क्या लिखोगे? ओके, अभी अपॉन नहीं लिखोगे, आप डिवाइडेड बाय लिखोगे, इसके बाजू में मैं डिवीजन साइन डाल रहा हूं, देखना, और डिनोमिनेटर है वो बाइनोमियल है तो मैं उसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं राउंड में। टेल मी व्हाट इज 1 माइनस कॉट को क्या लिखोगे? Okay, this is just my first fraction which I have simplified. Same way can I simplify the second fraction? Yes, sir. Okay, let's do that now. Cot को क्या लिखोगे? Okay, and 1 minus जो है उसको क्या लिखोगे? tan को? इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. पक्का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये स्टेप, अगर ये स्टेप आपने सही किया तो नेक्स्ट 2-3 स्टेप आप अच्छे से कर लोगे। चलो अभी फर्स्ट स्टेप में जाते हैं, लेट्स गो इनटू द फर्स्ट ब्रैकेट। नाउ sin थीटा बाय cos थीटा यू कांट डू एनीथिंग, विल कीप इट एज इट इज, ओके? डिवाइडेड बाय, टेल मी व्हाट विल यू डू इन द फर्स्ट ब्रैकेट देयर? Sir, cross multiply. यस, सो व्हाट डू आई गेट देयर? Sin theta minus cos theta. Minus cos theta. सुपर्ब, योर ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ प्लस यहां पे सेकंड में सेम करोगे, सो यू विल से cos बाय sin divided by your, you will again you do the LCM, you will get sir cos minus sin upon, चलो ठीक है, चलो अभी फर्स्ट ब्रैकेट में फिर से जाओ। नाउ यू आर सेइंग सर sin बाय cos है और यहाँ पे डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा तो sin थीटा इन द न्यूमरेटर sin थीटा माइनस, ओके, सेम यू डू फॉर द सेकंड ब्रैकेट। नाउ सो सेकंड ब्रैकेट में आपने वही किया, रेसिप्रोकल कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ कैंसिल नहीं होता है, सेकेंड ब्रैकेट में कुछ कैंसिल नहीं होता, कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो न्यूमरेटर में साइन इंटू साइन गिव्स यू व्हाट? So see what you have in the numerator and denominator would remain as it is, okay, no change. Same way it happens in the second fraction there, cos square and denominator would remain the same, okay? अभी सुनना, यहां से चालू होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, listen to this very carefully. Now when you have to simplify this kind of sums, जल्दबाजी में मत करना, पहले फ्रैक्शंस को ध्यान से रीड करो, समझ लो, दोनों फ्रैक्शन में आर द डिनोमिनेटर सेम? नो, No, sir. बट But we can make it same. हाँ, कैन वी मेक सम पार्ट ऑफ इट सेम? Yes. तो आप बोलोगे सर इधर साइन माइनस कॉस है फर्स्ट में, क्या मैं इसको साइन माइनस कॉस बना सकता हूं? Yes, sir. Just So, you हाँ, let the yes. minus sign common. हाँ, so when I make this a sin minus cos, will the minus sign come out? Yes, sir. And that minus sign, will it get multiplied there with the sign here plus? चेक करो, मैं क्या कर रहा हूं उसको अभी देखो, मैं आपको वो समझा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। आप, मैंने जो अभी बोला, आपने बोला सर हम एक काम करेंगे, एटलीस्ट इसको साइन माइनस कॉस बना देते हैं, बट अभी जब भी उसको साइन माइनस कॉस बनाओगे तो मैंने बोला माइनस साइन आप कॉमन लोगे और वो माइनस साइन नेक्स्ट स्टेप में वो कनेक्टिंग साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस। डू यू एग्री विद दिस? हाँ, अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। चलो अभी आप ये दोनों एक्सप्रेशन को देखो एंड टेल मी, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट सेम है, क्या सेम है? टेल मी, व्हेन आई हैव समथिंग कॉमन इन अ एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन जब भी सॉल्व करना है, हमेशा अलजेब्रा में आपने सीखा है, अगर कुछ कॉमन ले सकते हो पहले कॉमन ले लो, तो कॉमन हटा दो, मुझे बताओ क्या कॉमन ले सकते हो? 1 upon sin theta minus cos. Superb. So I am taking that common, I'll see that.
न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 sin थीटा माइनस cos थीटा में कॉमन ले रहा हूं, तो मुझे बताओ फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या बचा आपका? sin square theta upon cos theta minus cos square theta upon sin theta. वेरी गुड. चलो अभी नाउ कैन वी सिंप्लीफाई द ब्रैकेट देयर? टेल मी इन दिस ब्रैकेट हाउ विल यू सॉल्व दिस? चलो एल्स, हाँ क्रिस क्रॉस. चलो साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या आएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. एग्रीड? तो बोला सर ये भी ठीक है, ये भी इजी है, सब एल्जेब्रा ही है. चलो आगे जाते हैं, अभी आपको एल्जेब्रा यूज करना है, कुछ नहीं है. चलो नाउ योर ब्रैकेट आउटसाइड वुड रिमेन द सेम, बट ब्रैकेट इनसाइड, लुक एट द न्यूमरेटर. इज इट इन द फॉर्म a cube minus b cube? Okay. Others, yeah. Okay. तो आप उसको a cube minus b cube फॉर्म में कैसे लिखोगे? फॉर्मूला बताओ. a minus b into a square plus b plus a. Okay, you are telling me the formula, right? a cube minus b cube का फॉर्मूला क्या है? a minus b into a square plus ab plus b square. हाँ, but right now can I use that so that what I will have is a minus b मतलब मुझे sin minus cos मिल जाएगा. तो बाहर से कैंसिल हो जाएगा. हाँ अभी देखना ध्यान से, तो देखो, चलो देखो. अभी मैंने ये किया तो आपने जो बोला वो वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वहां पे. सो व्हेन आई डू दैट इन द डिनोमिनेटर आई गेट. नाउ चेक करो. नहीं, बट उससे पहले अभी सब कुछ आपके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. एक नंबर. नाजनीन ने बोला ना अभी. Yes, Nazneen, very good. You can have all more people talking. Let me have others also talking. Yes. So what do you have? I'll just write down what is left in the numerator. Okay, numerator में अभी चलो, अभी आप बताओ क्या करूं? Sin square theta plus cos square theta 1 less equal to 1. Okay, अभी सुनो. अभी आता हूं आपको. Now there's a catch here. Please, everybody. एक या जस्ट अ मिनट. आपने बोला सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 लेता हूं. ओके, 1 लिया तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन. नहीं मिलेगा. अभी अगर ऐसा किया ना, मैंने ऐसा किया तो ये कभी नहीं आएगा. क्यों? समझो बेटा, क्यों नहीं मिलेगा मालूम है? सुन सुहान, ये कभी नहीं आएगा. क्यों मालूम है? यहां पे मुझे क्या चाहिए? 1 प्लस tan प्लस कॉट. 3 अलग अलग फ्रैक्शन सेपरेटेड बाय प्लस चाहिए. अगर मैंने ऐसा इसको सेपरेट किया तो मुझे 2 ही फ्रैक्शंस मिलेंगे. दो एडिशन एक ही है. मुझे 3 टर्म्स चाहिए. वो नहीं मिलेगा बिकॉज 2 एडिशन है ही नहीं मेरे पास. बट मुझे ये बताओ, 2 एडिशन आपके पास यहां था कि नहीं? इसका मतलब ये है, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं आपको, डोंट बी एक्साइटेड एंड जस्ट यूज द आइडेंटिटी. बी केयरफुल, लुक एट व्हाट यू वांट ऑन द राइट हैंड साइड. ना इन दैट एक्साइटमेंट अगर आपने इसके बाद ये स्टेप लिखा तो आपको ये कभी नहीं आएगा, बिकॉज यू मेड अ मिस्टेक, यू नॉट गेट इट. सो दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सर यहां पे प्लस 2 बार है, मुझे ऐसे ही चाहिए, बट ओनली थिंग इज कैन आई सेपरेट ऑल दिस? If I separate this as 3 different fractions, yes, superb. What Sanidhi is saying is, Sanidhi is saying, sir, that cos theta into sin theta जो denominator में, can I give that to each and every numerator? In short, when I have a plus b plus c upon d, can I write it as a upon d plus b upon d plus c upon d? Can I write that? Yes, sir. Now this will help me to get 3 different fractions. That is what you need to be careful. देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं. तो अभी मैंने ऐसे किया, फर्स्ट को अलग किया, सेकेंड को अलग किया, तीसरे को अलग किया. अभी मुझे बताओ, चलो अभी फर्स्ट फ्रैक्शन में देखो क्या होगा. वेरी गुड. साइन एंड साइन वुड गेट. सुपर. व्हाट यू आर गेटिंग? साइन अपॉन कॉस. सेकेंड में तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 मिलेगा. ओके, वेरी गुड. तो साइन अपॉन कॉस, यहां पे 1 है और यहां पे
upon cot theta. Superb. It is tan plus 1 plus cot, and that is what you wanted on the right hand side, and you got the right hand side. So this was so very important, sum. This was important here. This was important after this step where you had to do this, not the other one which we discussed. And it was also important when we were actually taking that minus sign common. तो ये बेसिक चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मुझे समझाना था. इसके लिए सम बहुत क्रिटिकल है. डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज इसमें दो पार्ट से जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे. Shardul has asked me a question. He is saying that, sir, is it okay if we write the divisions vertically instead of division sign? Shardul, you can always write it बेटा. Shardul, आप लिख सकते हो, बट आपको पता है जब आप वर्टिकल फॉर्म में लिखते हो तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है. अभी इमेजिन करो फर्स्ट स्टेप में यहां पे आप इधर इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख रहे हो, तो आपका जो एक एक फ्रैक्शन है वो आप चार चार लाइन में लिख रहे हो. ओके, नाउ एनीवेयर इन दैट यू एंड अप डूइंग अ स्मॉल मिस्टेक, वो मिस्टेक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. इसके लिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं, जैसे ही फ्रैक्शन आया और फ्रैक्शन में आपको और फ्रैक्शन आने वाले तो आप उसको सिंप्लीफाई करो, नहीं तो आपका जो लिखता है ना वो भी इट विल नॉट लुक दैट नीट एंड क्लीन. एट द सेम टाइम अगर कोई मिस्टेक हुआ तो आप वो मिस्टेक ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखे आपका एंटायर राइटिंग. दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से सिंप्लीफाई करो, उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखो, हॉरिजॉन्टल. जैसे आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखोगे कितना भी आने दो, आपको कभी तकलीफ नहीं होगा और आप मिस्टेक्स ढूंढ पाओगे अगर कुछ है तो. It becomes difficult in vertical to do that. That's the reason I say go to horizontal the moment you have that. Yeah, Omkar, you have a doubt. Ask Omkar. Omkar, पूछो ना. Sir, can we solve this sum by another method? हाँ, tell me ना. See if I'm right. हाँ. We start with tan theta upon 1 minus cos theta plus cos theta upon 1 minus tan theta as a relative. So instead of simplifying it, we do cross multiplication. Means you are taking the LCM first. हाँ. Yeah. Okay. So we get tan theta bracket 1 minus tan theta plus cos theta bracket 1 minus cos theta upon 1 minus cos theta into 1 minus tan theta. Perfect. Right. So can we cancel the brackets? Can we do that? Okay. नहीं, but which bracket, beta, which brackets are getting cancelled? The one in the numerator, 1 minus tan theta, and the 1 minus tan theta in the denominator. नहीं, but it is not getting cancelled because you have plus sign in between, na beta. Yeah, exactly. Yeah. हाँ, you can't cancel na, because that's the sum. Because that is in the form of addition. In the numerator it is a binomial, and in the denominator it's a product. You won't be able to cancel that because numerator में आपको binomial मिल रहा है, तो आप उसको cancel नहीं कर पाओगे. हाँ, but ओमकार, even if you do that ना, उसमें भी अगर आप solve करते हो ना, cancellation नहीं होगा. आप solve करोगे, अब eventually बाद में आके एक step में आपको basic में जाना ही पड़ेगा. मैंने ऐसे सॉल्व किया, मैं करेक्ट कर रहा था, तो मेरे को मिला 1 plus tan theta plus cos theta upon 1. I did component though, so I got tan theta plus cos theta plus 1 upon 1, which is what we wanted. But Okay. then now I know. हाँ, but वो cancellation you got it ना, what I said. हाँ, वो उधर, हाँ, that is an error. Thank you. But was this ऐसा किसी को भी कुछ डाउट हो तो पूछना, like Omkar asked, Shardul asked a question. You have queries like this, please do ask her. It's very important if you have such queries. पूछना. Okay, there is one more. This was easy. Okay, I'll just first want you to take a screenshot of this so that you have the entire solution. Ujay, please zoom in. Yeah, so that's the first slide. Please take a screenshot of that. Then this is the second one. Okay. Then we have the third one. That's the third. Okay. Yes, sir. Okay. You have, yeah, if I take 15 minutes more of your time, is okay? Yes, sir. Because I know you were told up to you were told up to 7. I know you were told up to 7. Yeah, Ujay, bring me back now. But I have some 3 more sums which are nice ones. I wanted to discuss that too. Okay, so I may just take 15 minutes more. That's fine, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so
before I go there, okay, actually in actually how many I have two more small sums in trigonometry to discuss and two in mensuration, so 4 in all. So if I get 15-20 minutes, that's fine, right? So I'm just asking because because सबको time 5 to 7 बोला, but I thought जितना time है उसमें मैं जितना justice कर पाऊँ, जितना जो अच्छे sums आपके साथ discuss कर पाऊँ, that's the reason. There's one small sum, this is a very small one, but I specifically took this for a simple reason, because ऐसे टाइप के सम्स आपने 9th में किए थे, but 10th में नहीं है. 10th में आपने किए नहीं है टाइप के सम्स, बट ये कॉन्सेप्ट्स है, आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. If you look at this sum, okay, just look at this sum. It says that cos of 45 plus x is equal to sine of 30, and they say find the value of x. Now this kind of sum is not a new sum. You did this kind of sums in, I don't know, in 9th you had a concept. Okay, tell me, do you have complementary angles? हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, याद है? मैं रिवाइज करवाता हूँ. चलो मुझे बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? सेम वे cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा. ऐसा पढ़ा था? ऐसे ही सेम आपने सेक और सेक और बाद में आपने साइन और कॉस जैसा ऐसे सेक और कोसेक के लिए पढ़ा. Yes, sir. और तीसरा पढ़ा था वो tan और cot के लिए था. Okay, I'm just revising us. So no, I'm just refreshing this. So purpose of me taking this was, you can have this kind of sums coming in. You can't say that sir ये नहीं आएंगे. ये आ सकते हैं. ये बहुत सिंपल है. ये 2 मार्क का सम है. बट मैं डिस्कस करने का रीजन है बिकॉज अगर ऐसे टाइप के सम आए, यू कैन नेवर से सर वी डोंट हैव इट, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच यू हैव लर्नड ऑलरेडी इन ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो साइन एंड कॉस में ऐसा होता है. सेम वे सेक एंड कोसेक में होता है. सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा. देन यू हैव लर्न tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. करेक्ट है? नाउ look at this very carefully. When you go to this question, it is saying that we have cos of 45 plus x is Recording stopped. Recording in progress. yeah. Can you see this now? Okay, अभी सुनना. पहली बात, मेरा पहले क्वेश्चन है आपको. ओके, सुनना ध्यान से, एंड आई वांट यू टू थिंक एंड आंसर मी, नॉट अबाउट द सम. इस सम में मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी, बट माय क्वेश्चन टू यू इज, मुझे समझा कैसे कि मुझे यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना है? चलो सोचो. नहीं, हाँ, एक मिनट. हु सेड दैट? अजद क्या बोला? से वंस अगेन, टेल मी दैट. Sir, because both the complementary angles are equated here. Oh, which complementary angles are equated? Sine and cos. हाँ, अभी सुनना. Both are complementary to each other. अभी सुनो, अभी जो इसने बोला ना अजद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जल्दी स्ट्राइक नहीं होता है. प्लीज सुनना सबने. अभी कोई भी सम, अभी आपको जब भी कोई एक्सप्रेशन देता है एंड दे आर सेइंग साइन ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ अनदर एंगल. साइन एंड कॉस अगर डायरेक्टली आपको इक्वल दिया है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. Because you have learned sin theta is equal to cos 90 minus theta, cos theta is equal to sin 90 minus theta. तो sec और cosec अगर आपको लेफ्ट और राइट में इक्वेट किया है, so that is only possible when they are complementary. tan and cot अगर आपको इक्वेट किया है, that is only possible when they are complementary. Otherwise you will not understand that. तो यहां पे cos of an angle is equal to sin of another angle दिया है. मतलब बहुत क्लियर है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ही ये इक्वेट हो सकते हैं, नहीं तो ये कभी इक्वेट नहीं हो सकते. दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हिच आई जस्ट सेड इट वेरी राइटली. ओके, नाउ बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, नाउ यू आर गोइंग टू यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. या तो आप लेफ्ट में यूज करो या आप राइट में यूज करो. फॉर एग्जांपल, आप बोलोगे सर लेफ्ट में मुझे सेम रखना है, तो ठीक है, चलो सेम रख दो. राइट में आप टेल मी, साइन ऑफ 30 को आप क्या लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री यूज करोगे तो? Sir, 90 minus 30. But sin theta is equal to what? Cos 90 minus 30. So can I write this as cos of 90 minus 30? Tell me, is this clear to everybody? Yes, sir. Okay, now tell me further. So I got cos of 45 plus x
is equal to what is there on the right hand side now? Cos of 60. 60. okay. Now I have a question to you. अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ? Cos और cos cancel. cos को common. No, sir. कैंसिल नहीं होता है. ओके, बेसिक चीज याद रखो. मुझे बताओ, अगर मैं आपको cos of 45 plus x equals to 60. बट ये मैं चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं. अगर मैंने आपको cos of 45 अपॉन cos of 60 दिया तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो बहुत इजी है, cos cos कैंसिल करो, 15 3 जा 15 4 जा, आंसर 3 अपॉन 4. ऐसा लिख सकते हो क्या? No, sir. डोंट डू दिस. दिस इज ब्लंडर. इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही नहीं. यू कैन नॉट सेपरेट अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम एन एंगल, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एग्जिस्टेंस एंगल के साथ ही है. एंगल के साथ अलग कर दिया तो उसका कुछ वजूद ही नहीं है. सिर्फ कॉस का कोई मतलब नहीं है, कॉस ऑफ एन एंगल का मतलब होता है. सो यू कैन सेपरेट इट. तो आप ऐसा लिखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा. इसके लिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं सर कॉस कॉस कैंसिल कर दो, आ गया आंसर. कैंसिल नहीं होता है. एक चीज याद रखो, यहां पे भी कॉस है, यहां पे भी कॉस है. तो जब मैं बोल रहा हूं कि कॉस ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ अदर एंगल, अरे कॉस कॉस इक्वल है वो तो तभी होगा अगर एंगल इक्वल है. अगर इधर भी एंगल 30 है, इधर भी एंगल 30 है, तो ही तो कॉस का वैल्यू सेम होगा. इधर एक एंगल और इधर एक एंगल, कॉस सेम हो सकता है क्या? नहीं. एक चीज याद है, सो व्हेन यू हैव द सेम रेशियोज ऑन बोथ साइड्स एंड इफ दे आर इक्वल, इसका मतलब ये है, ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. No cancellation happens here. So that is what we observe. And so in the next step, we can say, because of that, you can equate the angle. That is 45 plus x will be equal to 60. You are saying, sir, इसकी वजह से angles equal होंगे. Okay, अभी, have you got an equation here? Yes, sir. Now simplify this equation. So now what do you get? Yes, x is equal to 60 minus 45. 15. And what is x is equal to? 15. 15. And that is true, na? Because if you see, cos of 45 plus 15 मतलब cos of 60 है. cos of 60 का वैल्यू क्या है? cos of 60 का वैल्यू है हाफ और sin 30 का वैल्यू है हाफ. ये दोनों इक्वल है. ये दोनों इक्वल है. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. So this was not a difficult one, but I purposely took it because I wanted to refresh that concept, which can come for you even in a 2-mark sum or a 3-mark sum. So you can't just say, sir, it is not there, but you should know why are you doing this step. ये clear है? Just take a screenshot of this. There is another one interesting, one more from trigonometry which I am taking. Sir, हाँ बोलो ना अंशिका, बोलो. जो cos 90 minus 30 है उसमें रीजन लिखना पड़ेगा. हाँ रीजन लिखना पड़ेगा. रीजन ना यहाँ पे लिखोगे बेटा आप. यहाँ पे ना, यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा. आपने वो यूज किया, लिखोगे रीजन लिखोगे. रीजन Formula also we use. pardon Girija, what did you ask? Yeah Girija, say. गिरिजा ऑन करो. गिरिजा शायद नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से आपका. Sir, in the previous question. हाँ प्रीवियस क्वेश्चन बोलो. प्रीवियस क्वेश्चन में भी जहां जहां आप ना आइडेंटिटी यूज करोगे ना गिरिजा, wherever in the previous sums which I discussed, जहां जहां आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, आपको आइडेंटिटी एज अ रीजन लिखना है. आपको अगर आपने ये यूज किया है, फॉर एग्जांपल सेक को, फॉर सेक थीटा यू हैव रिटन इट एज 1 अपॉन cos थीटा, ये नॉट रिक्वायर्ड. If you are using an identity, do write it. If you are using a complementary angle का concept, yes, you need to write it, not otherwise. What if it is a 2 marks question and we have used this formula, so then we have to write? Yes, still you need to write. Even if it is a 1 mark sum or a 2 mark sum, doesn't matter. But if it is an identity you are using, or if you are using a complementary angle का concept, you should write the reason there. You should write it. What will be the reason for this? Which one? Here? Yes. इसका ना, here the reason would be because मैंने क्या यूज किया? sin थीटा को मैंने cos 90 minus थीटा लिखा. हाँ, तो that's the reason what you write there in the bracket. Okay. Okay, चलो अभी नेक्स्ट सम बताओ. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मस्त है. हार्डली एनीथिंग, 4-5 लाइन में खत्म हो जाएगा, बट मस्त सम है. इट्स नॉट ग्रेट बट स्टिल ब्यूटिफुल.
चलो, you are going to tell me, I am going to write, चलो, I am going to select the LHS. Okay, I am selecting the LHS. So it is 1 minus cos square A into sec square B. Okay, plus tan square B into 1 minus sin square A. I need to solve this and get the right hand side. Okay, now you need to tell me, you know what is beautiful here? ये सम क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज इसमें एक एंगल नहीं, दो अलग अलग एंगल्स है. एंगल ए भी है और एंगल बी भी है, और इसमें ना बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे, चलो देखते हैं ध्यान से. मुझे बताओ ये सॉल्व करके हमें क्या लाना है? ओके, तो ए के लिए मुझे साइन स्क्वायर लाना है और बी के लिए मुझे tan स्क्वायर लाना है. ठीक है, चलो ध्यान देते हैं. चलो नाउ लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. फर्स्ट ब्रैकेट देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है. मुझे कॉस स्क्वायर है कहीं पे चाहिए क्या राइट हैंड साइड में? तो मैं उसको रिप्लेस करूं? टेल मी हाउ कैन आई रिप्लेस? फर्स्ट, हाँ, वेरी गुड. सो उसमें से कैन आई राइट दिस एज साइन स्क्वायर है? ओके, इनटू सेक स्क्वायर बी है. मुझे बताओ राइट हैंड साइड में चेक करके बताओ, डू वी रिक्वायर सेक स्क्वायर बी? सेक स्क्वायर बी को कुछ लिख सकते हो क्या? Yes sir, 1 by cos square. 1 by tan square B, sir. 1 plus tan square. Yes, because on the right hand side you want tan, na? So you think of the identity. So from that identity you will say, sir, sec square b का वैल्यू मुझे 1 plus tan square b मिलेगा. ठीक है, चलो आपने बोला तो मैंने लिख दिया. सुनो, आप बोल रहे हो तो मैं लिख रहा हूं. ओके, प्लस इधर tan square b है, इसको रखूं कि निकाल दूं? रखो, बिकॉज मुझे चाहिए. ठीक है, चलो आपने बोला चाहिए तो रख देते हैं. ओके, और ये ब्रैकेट में जो है उसको रखना है कि निकालना है? नहीं, लिखो ना, लिखो ना, उसको हम लोग cos स्क्वायर लिखते हैं ना. नहीं सर, बट हमें राइट हैंड साइड पे cos नहीं. अरे बट नहीं चाहिए सुहान, लिख सकते हैं बट एक्साइट मत तो लिख मत, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए ना राइट हैंड साइड में. तो अननेसेसरली, बिकॉज मैं फिर उधर से cos स्क्वायर को क्यों निकालता? याद रख, मुझे जो चाहिए उस पर ध्यान दे. इट्स नॉट दैट मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं तो अप्लाई करूंगा. व्हाट आई वांट इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट. सो आई विल कीप दिस एज इट इज. ओके, चलो अभी मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या ऑप्शन है, क्या करूं अभी नेक्स्ट स्टेप में? चलो बताओ यहां पे क्या करूं, व्हाट कैन आई डू हियर? कुछ ऑप्शन तो नहीं. ब्रैकेट ओपन करूं? कैन आई ओपन दिस ब्रैकेट? सो इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, व्हाट डू आई गेट? प्लस ओके, प्लस अभी यहां पे भी ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं? चलो ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? ओके, अभी कुछ कैंसिल होता है क्या? देखो, साइन स्क्वायर है tan स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर है tan स्क्वायर बी, ये माइनस में वो प्लस में, कैन वी कैंसिल दैट? सो व्हाट इज लेफ्ट? Sin square A plus tan square B. And that is equal to RHS. Your sum is done. Yes. See, so simple it was. But why did I discuss this with you? For you to understand कि आपको सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करना है. वही मैं आपको बार बार बहुत सारे सम्स में समझाते रहा हूं. इट्स नॉट दैट यू सी एन आइडेंटिटी एंड अप्लाई, सी एन आइडेंटिटी अप्लाई. नो, आराम से. You apply only if it is required. That's why I'm saying हमेशा see the other side, see the other side, see the other side. Don't lose focus on the other side because you're solving left hand side to get the RHS. तो RHS में क्या चाहिए उसके हिसाब से left hand side को solve करो. Just blindly don't keep on doing it. That is what I'm trying to tell. Easy है? Take a screenshot of this. A small sum but a very important one. Very important one. Done, sir. Okay, now you can take a screenshot first of a nice one. Take a screenshot of this. ये बहुत मस्त sum है. I'm just discussing two more sums. Two more. 1, 2 from mensuration. Not मतलब अच्छे sums है, इसके लिए मुझे discuss करना था. Okay, ये बहुत मस्त है, बहुत मस्त है. हाँ सर, ये आया था अभी प्रीलिम्स में. हाँ, और बहुत मस्त है. इसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है. डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, लिखने में बहुत छोटा है.
यू विल जस्ट राइट इट इन फ्यू स्टेप्स एंड इट विल गेट, बट इसका थॉट प्रोसेस जो डालते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। चलो आप ऐसे क्यों करोगे, कैसे करते हो। चलो लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन। टेल मी, रीड द फर्स्ट लाइन एंड टेल मी व्हाट यू गेट। स्फीयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Surface area of sphere is equal to surface area of ओके, उन्होंने बोला कि एक स्फीयर है उसका सरफेस एरिया एंड एक क्यूब है उसका सरफेस एरिया सेम। ओके, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 pi r square. ओके, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? Pi r 6L square. 6L स्क्वायर। सो मतलब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला ये दो चीज इक्वल है। मतलब आप बोल रहे हो सर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6L स्क्वायर, ऐसा उन्होंने दिया है कि नहीं? yes. सो अंडरस्टैंड ना, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन वी अंडरस्टूड दिस। तो मैंने लिख दिया। सुनना, मैं आप कैसे सोच रहे हो मैं समझा रहा हूं, आंसर नहीं दे रहा हूं, क्यों कर रहे हो वो समझो। तो आपने बोला सर इतना हमने लिख दिया, चलो लिख के रख देते, चलो आगे बढ़ते। अभी उन्होंने क्या बोला, शो दैट द रेशियो। ओके, रेशियो बोला, रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, आगे देखते। रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर न्यूमरेटर में आएगा। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? Volume of cube. ओके तरुण, यू आर करेक्ट, इट इज इन द डिनोमिनेटर विल गेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, मुझे ये फाइंड करना है और मुझे ये प्रूव करना है कि इसका वैल्यू आई शुड गेट इट एज √6 ओके, ठीक है। पहले मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 pi. चलो मैं लिख देता हूं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? एल क्यूब। बट ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ रहा है तो मैं न्यूमरेटर को अलग से डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर लिखूं। तो चलो मैंने लिख दिया। अभी मुझे बताओ, मैं आगे इसको 4/3 पाई आर क्यूब को ऐसे रखा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूं तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। ओके, ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? व्हाट इज देयर इन द न्यूमरेटर ना? 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 1, तो न्यूमरेटर में 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, सॉरी पाई आर क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या है? ओके, हाँ अभी सुनो, अभी आई वांट यू टू बी वेरी केयरफुल। तो आपने बोला सर मुझे ये फाइंड करना था, तो इसके लिए मैंने सॉल्व किया, रीच दिस, आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड फर्दर। अभी सुनो, यहां पे आता है, हमें इसे सॉल्व करके, लिसन टू दिस, हमें इसे सॉल्व करके आंसर लाना है रूट्स। ओके ओके, हाँ हाँ एक मिनट, हाँ हमें √6 चाहिए। ओके, जस्ट लिसन टू दिस। ओके, तो आपने बोला ठीक है सर, अभी इसका वैल्यू ना, अरे बट मुझे ये बताओ, इसको सॉल्व करके ये आंसर लाने के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं? तो हमें उस इंफॉर्मेशन का यूज करना है, बट वो इंफॉर्मेशन कैसे यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी मुझे बताओ, इन दैट इंफॉर्मेशन डू वी हैव आर स्क्वायर? Yes, sir. डू वी हैव एल स्क्वायर? Yes, sir. बट आप यहां पे बोलोगे सर मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आर क्यूब और एल क्यूब है और मेरे पास इंफॉर्मेशन आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का है। ठीक है, काम करते हैं, क्या मैं आर क्यूब को आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं? R square into हाँ बोल, हाँ बोल क्या बोला सुवन? R square into R. हाँ वेरी गुड, सुनना दे तो, हाँ तो मैं इसको 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर लिखूं। ओके, मुझे ऐसे ही इसको स्प्लिट करके बताओ ना, एल क्यूब को कैसे स्प्लिट करूं? ओके, हाँ आपने जो बोला वही लिख रहा हूं। तो आप बोलोगे मेरे को सर आर क्यूब को मैं आर स्क्वायर इंटू आर में लिखता हूं और एल क्यूब को ना सर मैं एल स्क्वायर इंटू एल लिखता हूं। चलो एग्री किया? ओके, अभी मुझे बताओ, मुझे आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, क्या मैं ये वैल्यू वहां से ऑब्टेन कर सकता हूं? चेक करो एंड टेल मी, उसमें से मुझे वैल्यू लिखना है। सो कैन आई टेक आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर? देखो आर स्क्वायर उधर है, एल स्क्वायर को मैं उधर लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो देखो मैंने एल स्क्वायर को वहां लेके गया, तो यहां पे क्या बचा? 6 बचा, और इधर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4 पाई आया। टेल मी, कैन यू डिवाइड कैंसिल दैट फर्दर? No, sir. यू कैन रेड्यूस इट, मतलब 2, हाँ 2 जा 2 3 जा कर सकते हो, बट वो बाद में करते हैं, पहले मैं कैन आई पुट दैट वैल्यू हियर? Sir, because but we can cancel. हाँ वो करेंगे। अभी क्या मैं वो वैल्यू, ओके वो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो आपने बोला सर आर स्क्वायर अपॉन, अरे बट मुझे आर अपॉन एल भी चाहिए, आर अपॉन एल कैसे मिलेगा? Taking roots. हाँ 1 का स्क्वायर रूट ले लो। चलो 1 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिला बताओ?
What is square root of 6? Root 6. What is square root of 4? 2. And what is square root of pi? Root pi. So did you get this? Now can I put that value here? चलो अभी कैंसिल करो. 4 pi cancel. 4 pi. So 3 और 6. 3 ones are 3 twos and 2 gets cancel. सब कैंसिल हो गया? Yes sir. चेक करो आपका सब कैंसिल हो गया. You get root 6 upon root pi and your sum is over. मतलब ये सम इतना इजी है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये पार्ट समझना कि मैं इसको स्प्लिट क्यों करूं. बिकॉज आप देखोगे मैं आगे सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूं. मैं सॉल्व तभी कर पाऊंगा अगर मुझे इंफॉर्मेशन उधर से मिला. अरे बट उधर से इंफॉर्मेशन तो मुझे आर स्क्वायर और एल स्क्वायर क्या मिलेगा. सो दैट इज द रीजन इसको स्प्लिट करना जरूर. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये था, ये स्प्लिटिंग. अगर ये स्प्लिटिंग आपने बराबर किया तो सम इज वेरी इजी टू डू. Important, very important sum. You just take a screenshot of both the slides. Do that. That's the first slide. Take that. And one more. That's the other one. Take. Can you show the previous one again? Yeah, I'll show you. Take this one. That's the first. Okay, I'll answer one question. There is Aditya who has asked me a question. I'll take it for everybody and I'll answer that question. That is very important. Nice question is asked. Okay, meanwhile first take a screenshot of the second slide. Okay, second slide ये है. ये second slide है, ये ले लो. So can you show the first slide? Okay, I'll show you first. This is the first. Okay. Okay, and the second one is here. This is the second. Okay, I'll just come on to a question. There is only one more question which I'm going to discuss. But before we discuss that, okay, you can take a screenshot of that and then first take a screenshot of this question. Yes, sir. This is there in QR book. Yes, and this happens to be a very important sum. Very important sum. ये मैं बताऊं कभी का है. I'll tell you when. I'll tell you this is कभी का मालूम है portion I started. This was in the year ये portion this was in the year some 2004-5 जब भी था ना 2004-5 वो 4-5-5-6 का बैचेस तभी का समय है. उस टाइम पे ये टेक्स्ट बुक में हुआ करता था ये सम. हम लोग पैदा भी नहीं तभी हमने पढ़ाया है. This was there. That time I was teaching in a class that time we had this sum. That was there. और उस टाइम पे छोटे टेक्स्ट बुक हुआ करते थे. ओके छोटे टेक्स्ट बुक हुआ करते थे और वहां पे ग्रुप सी ग्रुप डी करके कॉन्सेप्ट हुआ करता था टेक्स्ट बुक में. तो ग्रुप डी में एक सम था, उसमें से ये सम है. दिस इज दैट ओल्ड. That means I'm talking about a sum which is in the portion 18-20 years old. But it's a beautiful sum. Very nice one. Okay, but before I go into that, ये last sum है हम जो discuss कर रहे हैं. I'll just try to answer a question which Aditya has asked. Aditya has asked a question. Listen. Aditya says, sir, when do we decide or when to decide we have to take total surface area or we have to take curved surface area? Listen to his question. A very nice question. He's saying, sir, हमें टोटल सरफेस एरिया लेना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया लेना चाहिए. जब भी उन लोग सरफेस एरिया पूछते हैं, अगर सिर्फ क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया है तो हमें कैसा पता चलेगा कि टोटल सरफेस एरिया लेना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया लेना चाहिए. ही गॉट दैट क्वेरी बिकॉज इन द प्रीवियस सम दे हैड जस्ट टोल्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड दे हैड टोल्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. अभी सुनो क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन. आई लाइक टू आंसर दिस. सब लोग सुनना. कभी भी याद रखना, व्हेन आई से कोई भी ऑब्जेक्ट दिया मैंने आपको एक सिलेंडर दे दिया और मैंने बोला इस सिलेंडर का मुझे सरफेस एरिया चाहिए. टेल मी फ्रॉम दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? सरफेस एरिया मतलब क्या? हाँ, नहीं, इट डिपेंड्स नॉट, इट डजंट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, इट इज व्हाट आई हैव आस्क्ड. लिसन टू द क्वेश्चन. आई सेड मैंने आपको सिलेंडर दिया. आई जस्ट से देयर इज अ सिलेंडर एंड आई एम सेइंग उसका सरफेस एरिया. तो मैं जब भी उसका सरफेस एरिया बात करता हूं, व्हाट डू आई मीन इज आई एम सेइंग उसके जो भी सरफेस आपको दिखते हैं उसका एरिया. तो इट इज ऑलवेज टोटल. अभी कभी भी याद रखना, सिर्फ सरफेस एरिया अगर मैं नो बेटा, नो सुनो बेटा, हमेशा याद रखना
अगर कोई भी सम दिया, कोई भी सम, जस्ट गुड क्वेश्चन आदित्य एंड आई एम टेकिंग इट फॉर एवरीबॉडी, जस्ट लिसन। अगर कोई भी सम हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और वो ऑब्जेक्ट के लिए इफ दिस जस्ट से फाइंड सरफेस एरिया, देयर इट मींस ऑलवेज टोटल सरफेस एरिया, इट इज नॉट कर्व्ड सरफेस और इट इज नॉट दैट, इट इज ऑलवेज टोटल सरफेस एरिया। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट दिया है उसका मुझे सरफेस का एरिया दो। तो सरफेस एरिया, दे आर नॉट स्पेसिफाइंग विच सरफेस, इसका मतलब उसमें जितने सरफेस है उसका एरिया दो। सो इट इज ऑलवेज टोटल सरफेस एरिया। सो कीप दिस इन माइंड, डोंट मेक दैट मिस्टेक। So if they only specify surface area, it is always supposed to be total surface area. भूलना मत। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक का, उसमें एक टॉय वाला सम था। हाँ जो एरिया दिखता है उसको लेना है। हाँ 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 सरफेस लेना है। हाँ हाँ हाँ, सुनना ये क्या है? सुनना सुनना बेटा, वो भी बराबर है ना, वो करेक्ट है। उसमें क्या था मैं समझाता हूं। उसमें टॉय था जो एक कोन से बना है, सिलेंडर से बना है और एक हेमिस्फीयर है। अभी तुझे जब भी वो टॉय दिया है, मैंने क्या बोला, वो टॉय का सरफेस एरिया फाइंड कर। सो टॉय का सरफेस एरिया फाइंड कर मतलब टॉय का सब सरफेस एरिया फाइंड कर। अभी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो टॉय का सरफेस एरिया मतलब टॉय का टोटल सरफेस एरिया, जितना भी सरफेस तुझे वहां पे दिख रहा है। because that is hidden, that हाँ, वो कैसा है, सी बट क्वेश्चन वहां पे है सुहान, क्वेश्चन वहां पे करेक्ट है। बिकॉज व्हेन आई से सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट से बना हुआ है और उसमें क्या हो रहा है, चिपकाया हुआ है। इट्स अ टॉय विच इज जॉइंड एंड मेड। सो व्हेन आई से दैट्स द ऑब्जेक्ट विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मुझे उसका सरफेस एरिया चाहिए। तो मुझे उसका सरफेस एरिया चाहिए मतलब जितना भी सरफेस तुझे दिख रहा है उसका एरिया ऐड कर। तो तू बोलेगा सर उसमें क्या दिख रहा है, मुझे कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर दिख रहा है, मुझे कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर दिख रहा है और मुझे कर्व सरफेस ऑफ द कोन दिख रहा है, तो मैं ऐड करूंगा एंड दैट हैपेंस टू बी द सरफेस एरिया और यू से द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट के लिए तो टोटल सरफेस एरिया वही है। So when I say surface area, it is always supposed to be a total surface area of the object. It's a good question which Aditya raised, so that everybody has that cleared up. Very important. Okay, तो please वो ध्यान में रखना। Okay, last question चलो डिस्कस करते हैं। लास्ट चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर करना। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ टैप, सो फ्रॉम अ टैप वाटर इज ड्रिपिंग, सो वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ टैप एंड दिस वाटर ड्रिप्स एंड फ्रॉम द टैप and at the rate of 4 drops in every 3 seconds. Okay, Hansel has already given me the answer and that's correct. 4 drops in every 3 seconds. इसका मतलब क्या है, 3 सेकंड में कितने ड्रॉप्स, 3 सेकंड में कितने ड्रॉप्स, 4। सुनना, ओके आगे पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज 0.4 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक बूंद पानी जो गिरा उसका वॉल्यूम है, उससे कितना पानी जमा हुआ, 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे ये बताओ 4 ड्रॉप पानी जब भी गिरेगा तो कितना पानी कलेक्ट होएगा, 1.6 ना, 4 ड्रॉप्स इंटू 0.4, एक का वॉल्यूम कितना है 0.4, तो 4 का वॉल्यूम कितना रहेगा 4 इंटू 0.4, कैन आई से इट इज 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि 3 सेकेंड में कितना पानी कलेक्ट हुआ, व्हाट इज योर आंसर। 1.6 into 3 seconds. ना 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 3 सेकेंड में 4 ड्रॉप, 4 ड्रॉप मतलब कितना पानी, 1.6। हाँ। तो अगर अभी तक 2 सेंटेंस से हमें क्या समझाना में कि 3 सेकेंड में 1.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पानी जमा होता है। इज दिस क्लियर? ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। ओके, नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो। इफ द ड्रिप वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल, ओके पानी बचाओ आंदोलन है, तो इसके लिए हम पानी बचा रहे, वेस्ट नहीं कर रहे, तो हम बोल रहे हैं इफ द ड्रिप वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल में कलेक्ट हो रहा है। सिलिंड्रिकल वेसल का हाइट दिया है और उसका डायमीटर दिया है, सो हाइट इज 7 एंड डायमीटर दिया मतलब मुझे रेडियस मिलेगा। सो यू आर सेइंग सर फॉर दिस सिलेंडर वी नो द रेडियस, वी नो द हाइट। ओके, हाइट इज 7, रेडियस इज 4, कैन आई से दैट? फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम विल द वेसल बी कंप्लीटली फिल्ड, बोला कितने टाइम में ये पूरा सिलिंड्रिकल वेसल भर जाएगा। ओके, हम कैलकुलेट करेंगे और बहुत इजी है, बिकॉज मुझे बताओ 3 सेकेंड में कितना पानी जमा हो रहा है। डू यू एग्री विद दिस?
तो वो पूछ रहे हैं कि ये पूरे सिलेंडर में जो पानी भरना है उसके लिए कितना टाइम लगे। अरे बट पहली बात ये तो बताओ, पूरे सिलेंडर में कितना पानी भरोगे? हाँ 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 हाँ, यस प्रमिति, व्हाट डिड यू से? हाँ परफेक्ट है, प्रमिति बोलती है सर जितना उसका वॉल्यूम है उतना भरेंगे। और वही आपका सेकंड क्वेश्चन है, चेक करो ना। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड। अरे वाटर कलेक्टेड इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इज नथिंग बट जितना उसका वॉल्यूम है। तो पहला मैं फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मुझे सेकंड क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दैट? तो सेकंड क्वेश्चन तो आप बोलोगे सर बहुत इजी है, सिलेंडर के लिए मुझे रेडियस दिया, हाइट दिया है, तो मैं उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूं। वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ इट दैट पाई आर स्क्वायर एच, मैंने वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दिया। 252. यस, तो आपने बोला सर आंसर मिल गया। सो यू आर सेइंग सर वॉल्यूम ऑफ वाटर Sir, I कलेक्टेड इज, have a doubt, sir. हाँ 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 बोलना अजत। Sir, here we are assuming that the bucket have negligible that width. मतलब Thickness. थिकनेस है। अजत क्यों मालूम है, थिकनेस अगर मेंशन ही नहीं किया तो हमें एज्यूम करना है कि उसको थिकनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। Okay. ओके दैट इज समथिंग, बिकॉज अगर थिकनेस होता ना दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट आउटर रेडियस इनर रेडियस। Yes. So here when they are talking about this radius ना, they are always talking about the inner one only, अंदर का। Yes. हाँ, तो उसमें तू कितना पानी जमा कर सकते हैं जितना उसका वॉल्यूम है, ऑलवेज। ओके, Okay. सो यू सेड इज द सेकंड क्वेश्चन आंसर्ड? Yes, sir. ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब समझो। फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, दे आर सेइंग दैट सर इतना पानी जमा करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है ना, बिकॉज 3 सेकेंड में मैं 3 सेकेंड में मैं कितना जमा कर रहा हूं, 1.6, करेक्ट है। तो हम पूछ रहे हैं कि 352 सेंटीमीटर क्यूब को जमा करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर हमें पता नहीं, हम उसको एक्स लेंगे। कैन आई डू इट बाय यूनिटरी मेथड? Yes, sir. तो 1.6 into हाँ, x इज इक्वल टू, 52. सुपर। अब यही देखना, यही मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया, चेक करो। मैंने वही बोला है, एक ड्रॉप के लिए 4 है तो 4 ड्रॉप का इतना होगा। मतलब आप बोल रहे हो कि 4 सेकेंड में, सॉरी 3 सेकेंड में 1.6 सेंटीमीटर क्यूब जमा होगा। तो आई एम सेइंग, अभी यही मैं बोल रहा हूं, तो देखो यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं। वाटर कलेक्टेड कितने हैं, 1.6, उसके लिए कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। बट अगर 352 है उसके लिए कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर नहीं पता है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो x इंटू 1.6, 1056. yes, so what you get is nothing but you 1056. do that in fraction, and then what you get is nothing but do the cancellation and you'll end up getting the value of x as 66 into this is nothing but 660 seconds. 660 seconds मतलब कितना मिनट हुआ? 11 minutes. So rather than saying 60 seconds, you will say it in minutes ना. So divide that in minutes by divide by 60 and you will get it in minutes. So you are saying sir एक cylindrical vessel भरने को आपको 11 मिनट लगते हैं। Was this easy? Sir, 20 भरेंगे 3 हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी है। तो उन्होंने बोला सर हाउ मेनी सच वेसल्स कैन बी फिल्ड इन 3 hours and 40। अरे मुझे बताओ, मैंने इसे 3 hours and 40 minutes, power 20 minutes. 3 hours मतलब 180 मिनट हो गया, Yes. 180 प्लस 40 कितना हो गया, 220 मिनट हो गया। 220. सो एक बकेट के लिए हमें 11 मिनट लगते हैं, तो 220 के लिए कितना लगेगा, सॉरी 220 में कितना भरोगे, 20 vessels. 220 divided by 11, isn't that easy? you will say it is directly, you can say in the next का सिर्फ वो पहला कैलकुलेशन कर लेने का, पहले इसको मिनट्स में कर लेने का। So when you do it in minutes, you will say it is 220. अभी यूनिटरी नहीं भी किया तो चलता है, फिर भी यूनिटरी से बताएं कि एक वेसल को 11 मिनट, तो y को कितना लगेगा 220, then you solve it. यूनिटरी नहीं किया तो भी डायरेक्टली कर सकते हो। You can say the number of vessels can be nothing but it is 220 upon 11 and you get it as 20 vessels. So you are saying that 20 vessels will be completed in 3 hours and 40 minutes. So wasn't this nice? This is a beautiful one. Yes, sir. हाँ, बहुत अच्छा समय। उस जमाने में ये 5 मार्क में आता था। दिस वाज यूज्ड टू बी अ 5 मार्क सम एट दैट टाइम। 5 मार्क में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 से लेके 2005-6 का सिलेबस था ये, ड्यूरिंग दैट टाइम। So nice one. Just take a screenshot of this right from the start. So I'll show you this each and every slide. Take this. That's the first. Done with the first? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then the second.
Yes, Vishal, you are correct on your answer. I know you did a mistake earlier, now it was correct. Second, now the, okay, third, that's the third. And coming on to the last, that's the last slide. So can you put third one? I'll show you. Third one is this. Yes, sir. Okay, and the last one is this. Okay, so tell me, now you all understood what all we discussed. Yes, sir. So abhi maine see what I was discussing is, and in that entire process na, what I wanted you to understand was the process of thinking. मैं आपको सिर्फ वही समझाना चाहता था पूरे प्रोसेस में जितने सम्स हमने किए आप कैसे सोचोगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है. देखो आपको लिखना बहुत इजी है, लिखना इज सेकेंडरी, दैट कम्स व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सम, इट विल कम ऑटोमेटिकली. राइटिंग इज नॉट डिफिकल्ट, लिखना स्टेप्स बहुत इजी है प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड. बट एवरी सम व्हाट यू आर डूइंग यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग ईच एंड एवरी स्टेप. हर एक स्टेप अगर समझोगे ना तो बहुत इजीली आप प्रूफ लिख सकते हो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. Now tell me, so now you're confident? Yes, sir. Yes, sir. Pakka? Yes, sir. So I took half an hour more. I was supposed to take it up to 7, but I said because I've selected all the sums, it is better I discuss those. That's the reason I just extended and thought of continuing till the end. Okay, so it was nice time with you all. I enjoyed each and every moment, right? I enjoyed each and every part having this discussion with you. Right, so eventually for the entire year I have been actually talking to you via video, right? So Yes, it's been sir, yes. it's been only in the form of that video. It's been a one-way interaction. So this so this was eventually this two-way interaction which we could have. Still it is online, but it is better because all of us are together. That's one. See the best part, you get everybody together, you are writing things. If it had been into a classroom, then we would have been writing things. Now here you're just taking a screenshot, you're not wasting your time there, you're spending time in discussion. So online has its benefits, right? So that's the advantage. It was nice. I had an amazing time with you all, and I wish you all the best for your exams. Do well, do very, very well. If we can have all of you on the screen for a minute or two, all of you having the videos on for 2 to 3 minutes, so that we can have just a small interaction. All of you on the screen. So Ajjad is here, yes, Shruti is here, Siddhi, Vedant, Tarun, Suhan has been there right from the start, Sannidhi is here, Anshika, yes, Janvi has been there right from the start, Parimiti is here, Alok is here, yes, Girija, yes, yes, Nisha is here, very good, Tarun, Aman, yes, a few more. Yes, Ujay, if you can just take me on to the next screen also, so that we have students. Yes, Sandhya, Srimati ji, Karan, Mayuri. Okay, but just be, I have been, okay, just I would like to talk to everybody saying that I have been interacting with all. I know I have not been able to interact with each and every child in that way. Okay, because those screens were not moving there. If I had them all on one screen, it would have been amazing. But the screen can have at a time only 25. Okay, but it was an amazing time with all of you. Had an amazing time. I enjoyed it really. Okay, hope all of you loved the session. So that's the reason I said, when I said TP session, I sent the Nimisha ma'am asked me, अरे रमेश सर सेशन का नाम क्या लिखना है? तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने बोला टीपी सेशन. तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया तुरंत, बोला टीपी सेशन क्या है? तो हाँ, मैं बोला सब लोग वो सोचेंगे, उन्होंने भी ऐसे ही सोचा. तो उन्होंने बोला, मैंने बोला आप टीपी सेशन भेज दो, मैं सेशन लूंगा तभी बात करता हूँ. So that's the reason. So she said okay. So that's the reason I knew everybody would be thinking what is that. So it's been, that's the reason I had kept it. It is thought-provoking session, so that you indulge into the thinking process, thought process, analytical part, वो discuss करें. So it was amazing time having a discussion with each one of you. Loved it, and hoping that you all do your best.
Okay, one thing, don't worry about the numbers. I'm talking in terms of your percentage. Give your best. As I said, only just keep on thinking कि I'll do better. Whatever I've done till now, उससे better. और एक चीज याद रखना, आप सबसे अच्छा एग्जाम ना, सबसे अच्छा पेपर आप बोर्ड में लिखोगे, वो गारंटी है. सबसे अच्छा वाला पेपर जो आप लिखोगे वो सबसे बेस्ट उधर ही लिखोगे. So don't worry about that. So just think, be positive, and just give your papers very well. Okay. So had an amazing time. Thank you. God bless all of you. God bless all of you. And Thank you, sir. you do very well in your exams. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. It's always my pleasure. Bye, sir. Thank you, sir. Anybody sir. wants to say anything, we can still have 2 minutes. If anybody wants to speak anything has to be shared. Anybody from anywhere wants to speak, you can just, Ujay, you can just move me onto the screen there. Sir, why don't you teach offline? I'll tell you, Arnav, what happens is, now we are the ones who are creating the entire content at the QR book end. So we are into a process of creating a lot of content. I used to do that long back. For me now, it's been now 23 years into this field only, teaching field. So in my initial time, up to the last, I'll tell you, up to the last almost 15 years, I was into classroom. I used to be into classroom. But what happens is, in the classroom, then there is a limitation of number of kids what you are able to take. I may be taking 10 sessions or 10 batches, but when you do this, your reach is tremendous. Means you're not reaching now 100, you're not reaching thousands, you're reaching lakhs. So there's the scope of reaching more students and giving them good education with the help of this online. That's the purpose. That's the reason started working into content and being in the back end. So it's been all into the studio only. So right now also you see the studio, so there are cameras, there are lights. So you see a proper green studio jo hota hai na, waisa studios hai. So that's the kind of setup see the here. studio? Huh? right now Yes, you sir. won't be able to see that because the camera is the still camera in front of me, okay, which captures me and which you are able to see. Okay. Only thing is you are able to see this. This is not an actual board. You would have understood this. That's Ujay, if you can make this green. The green screen. Now you can see this. Yes, sir. So that's a green screen. Yeah, Ujay, bring back. So there are a lot of things which we do. There are a lot of things which we try to do so that it becomes good for you, interesting for you. That's what we do at the back end, and we do work a lot on content. So it's been quite a long time which I've been spending on content. And my always intention has been, my passion is teaching. That never goes off. So that's the reason when I'm in front of the camera also, I love teaching. Passion doesn't go. Whether it is Sir, offline, did you have whether it is online. YouTube channel? Yes. Yes, there is one. There is one. There is one which is there. You all can get in touch with me. Yeah. See that's my name, full name. So at any point of time, you have something to ask for. If there is something, any question crops up to you, and if you want to get in touch, that's the same. That's the full name of mine, Ramesh Karnath, Karanath. So you can ping me on the Insta if you want on that particular thing. So if there is any question which you want to post, you can post image there. If there's something which you are not able to get, you can post me there. I'll be able to revert back with you with the solution. Okay, that is something which you can do. Okay, sir. But it was amazing. I had an amazing time with you. Amazing. I loved it. Kind of interaction. And I love when it is interactive. Sir, actually I have a doubt. Bol na. I want to score full marks, so can I attempt construction? Means in the board exam they will cut the marks, right? In the board exam they will cut your marks for construction. Even if it is proper. Even if it is, sun beta. Even if it is proper, they will not cut your marks. आपने सब कंस्ट्रक्शन किया, बट अगर आपने हर एक चीज ना 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर साइन, इक्वल टू कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ये सब आपने सबने डाला ना, यू विल गेट. और मैं एक चीज बोलता हूँ आपको ना,
कंस्ट्रक्शन मैं आपको एक चीज ही बोलना चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू आर इंटेंटिंग टू गेट फुल ना, तो मैं हमेशा जिसको भी फुल चाहिए ना, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप कंस्ट्रक्शन को जितना हद तक ना अवॉइड करो बेटर है। मैं ये नहीं बोलता मत करो, बट मेरा हमेशा एक सजेशन होता है बच्चों को, और जिसको फुल चाहिए 40 और 40 चाहिए, इंटेंशन इज वेरी क्लियर, मुझे फुल चाहिए और मैंने उसके लिए मेहनत की है, तो आपको मैं बोलता हूं कि आप अवॉइड करो। बट अभी के नए पैटर्न में ना, अभी के नए पैटर्न में आपका जो कंस्ट्रक्शन ना, बहुत चांसेस है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आने के, 3 मार्क में, 3 मार्क में ना कंस्ट्रक्शन आने के काफी चांसेस है, बट एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन आने के चांसेस है। तो अगर वहां पे आया ना तो आप अटेम्प्ट करो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट कंस्ट्रक्शन इन अ 4 मार्क। अगर 4 मार्क में आया ना कंस्ट्रक्शन मत अटेम्प्ट करो, बिकॉज इट बिकम्स वेरी लेंदी। हाँ बट बिकॉज और वो क्या हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। दैट्स द ओनली रीजन आई आस्क किड्स हु वांट टू गेट फुल, हु नो दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे विल गेट फुल, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको मैं बोलता हूं आप जितना हो सके अवॉइड करो। बोलता नहीं हूं कि मत करो, बट अवॉइड करने बोलता हूं। भी 4 मार्क्स के लिए आते हैं ना? देख अभी सिमिलर कौन सा प्रूफ्स थियरम्स नहीं, थियरम्स ना बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई थियरम नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ओनली क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, 3 मार्क में। 3 मार्क के लिए। हाँ, और मालूम है सबसे हॉट फेवरेट थियरम कौन सा है? सिमिलैरिटी ऑफ, नहीं सर, ये It थियरम ऑफ एरियाज ऑफ cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral जो है ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हाँ ये सर। थियरम सर वो हमारे स्कूल में 4 मार्क के लिए भी पूछा गया था। है, हाँ बट वो 3 मार्क में आएगा, 4 मार्क में आपको थियरम्स नहीं आएंगे बेटा, सर हम लोग 3 मार्क के में ही ये आएंगे। थ्योरम पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है। हाँ और ये हॉट फेवरेट है। उससे पहले भी पोर्शन जब भी ओल्ड था ना, उसमें भी ये काफी बार पूछा जाता था, बट एटलीस्ट ओल्ड पोर्शन में उन लोग 2 थियरम्स पूछते थे। They used to ask two theorems, so it was okay. But अभी सर, हाँ सर सर्कल्स में इंपॉर्टेंट थियरम्स बता दो ना। सुनो ना, और थियरम्स है ना, सिमिलैरिटी थियरम्स है ना, थियरम्स आपको 3 ही चैप्टर्स है जिसमें थियरम्स है। एक फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके, देन यू हैव प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये 2 थियरम्स हो गए, और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब फर्स्ट टॉपिक में आपके 3 ही है। 3 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल आता है? उसका थियरम नहीं आता है, नहीं आता सर, दैट्स द प्रॉपर्टी। दैट्स अ प्रॉपर्टी, दे डोंट आस्क यू अ थियरम ऑन दैट, ओके। ये 3, उसके बाद सेकेंड चैप्टर थियरम ऑफ पाइथागोरस जो है, थियरम ऑफ पाइथागोरस में यू हैव सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ज्योमेट्रिक मीन कोरोलरी एंड पाइथागोरस थ्योरम, 3, ओके, ये 3 हो गए। एंड देन कमिंग ऑन टू सर्कल, अभी सर्कल में कैसा है, सर्कल में आपको टैंजेंट सेगमेंट, ओके, 3 मार्क में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट होता है स्कूल का और बोर्ड का, अदर देन क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अलावा, वो होता है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और आपको पता है वो कितना इजी है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो आप हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम से करते हो, इतना इजी है, वो भी एक बहुत फेवरेट है। तो उसमें कौन से थ्योरम्स करने मालूम है, डू ऑल द थ्योरम्स व्हिच वी हैव मेंशन्ड इन द क्यूआर बुक। फॉर एग्जांपल मैं आपको याद दिला देता हूँ, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, वो करना। टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम के बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है। देन देयर आर फ्यू थ्योरम्स व्हिच वी हैव मेंशन्ड देयर, इफ यू रिमेंबर, हमने ना आपको सिखा के रखा है, क्यों, बिकॉज वो ना 3 मार्क में आने के बहुत चांसेस है। याद है, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, यस सर। हाँ, उसके थियरम्स हमने यहाँ पे प्रूव करके दिए हैं, वी हैव प्रूव्ड इट इन द क्यूआर बुक। तो वो क्यूआर बुक से वो भी प्रैक्टिस करो, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थियरम ऑफ, और एक इंपॉर्टेंट थियरम है जो 3 मार्क में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, वो कौन सा मालूम है, थियरम ऑफ, नहीं, टैंजेंट सेगमेंट, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, याद आ रहा है? तो प्रूव करने के लिए आता है वो? हाँ, वो आ सकते हैं, वो प्रूफ किया है, आप देखो हमारे क्यूआर बुक में हमने हाँ, प्रूफ किया है। सर टैंजेंट सी के सबसे लास्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना तूने, आई विल राइट टैंजेंट। सर, इट्स प्रूफ इज हाँ जस्ट सर, ट्रायंगल्स करना है दो। हाँ, टैंजेंट सीकेंट 65 to 70 के बीच में सब क्वेश्चंस वो वाले। परफेक्ट, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ये वाला जो है ना, ये भी करना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब ऐसे है जो आपको 3 मार्क में पूछे जा सकते हैं। तो सर्कल में तो 3 ऐसे हैं, एक ये है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और तीसरा जो मैंने बोला टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये 3 है जो आपको 3 मार्क में पूछने के बहुत चांसेस है।
और कुछ डिफिकल्ट है? inscribed angle. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम नहीं पूछते, बट हमने सीखा है, आप करके रखो, हमने सिखा के रखा, बट दैट इज नॉट समथिंग which is asked for 3 marks. They don't ask it for 3 Sir, marks. can you repeat Pythagoras theorem के theorems? पाइथागोरस थ्योरम के मैंने क्या उनसे बोले, I'll tell you, geometric mean corollary. Okay, then you have Pythagoras theorem and similarity of right angle triangles. सर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ सम के लिए यूज करो, प्रूफ के लिए Sir, नहीं आता. converse of Pythagoras theorem? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ एप्लीकेशन है, आपको प्रूफ नहीं आएगा. Sir, BPT. बीपीटी आएगा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी सिर्फ एप्लीकेशन है, प्रूफ नहीं आएगा. Sir, Apollonius theorem? अपोलोनियस थ्योरम कर लो, बहुत कम चांसेस है आपको आने के, बट जस्ट फॉर द सेफर साइड यू कीप इट करके रखो. अपोलोनियस क्यूआर में 4 मार्क्स के लिए दिया है. हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, वो सर. एक्चुअली 3 मार्क का है ही नहीं. अगर 4 मार्क के लिए आया तो अच्छा है. आया तो बहुत, नथिंग लाइक इट. अगर थियरम आया तो थियरम करना चाहिए, सोचना ही मत. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू. ज्योमेट्रिक कुछ मीन बदल ही का नहीं सकते theorem में. कोरोलरी भी हाँ. पूछ सकते हैं. हाँ विशाल बोलो ना, क्या बोले बेटा? सर, ज्योमेट्रिक मीन का कोरोलरी भी पूछ सकते हैं. हाँ, ज्योमेट्रिक मीन कोरोलरी आ सकता है ना, और वो तो बहुत इजी है ना. ओके सर. आपको थियरम ऑन सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके ट्रायंगल यार सिमिलर सर करके. इजी है, बट आज तक हम लोग को कभी ऐसा लाइक पूछा नहीं है, ना इसलिए. ना 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 ना, वो करके रखना बेटा, वो करना. वो ओके 3 सर. मार्क, वो 3 मार्क थैंक का यू. कैटेगरी में आता है. इट कम्स इन 3 मार्क्स ओनली. So I really love that everything important theorems of similarity. स्वयं similarity में बेटा, similarity में it is आपका first है BPT. Okay, prepare BPT, then you have property of angle bisector and areas of similar triangles. 3 ही theorem है. Basic proportionality theorem, Thank you, areas sir. of similar triangles, and property of angle bisector. Okay, so it was nice. You can connect me on. Sir, sorry sir, I had one more down. हाँ बोलना विशाल. Yeah, sir. Sir, actually, after the Apollonius theorem part in a QR book, after that, one more part came in which at the end there were 2 more proofs. I don't know which they were, but there were 2 more proofs. I'll tell you वो proofs Application. कौन से proofs मालूम है? That is nothing but application of Pythagoras theorem. Pythagoras. हाँ, for acute angle and obtuse angle, उसका Sir, proof. Yes. b a plus b the whole square length. हाँ, वो पहले acute minus and के plus. हाँ, for acute and obtuse किया है वो. So, sir, that can have a chance to come. नहीं, वो chance नहीं है. Okay, Sir, I sir. have one more तो doubt. भी 4 मार्क दिया है. हाँ बोलना, कौन था? Sir, Just ask. या पुनीत? क्वेश्चन 4 तक मतलब पूरा पेपर हो जाता है, क्वेश्चन 4 पे लैक होता है, तो क्वेश्चन 4 कहाँ से प्रैक्टिस करूँ? नहीं सुनो, अभी मैंने ना तुम लोगों को एक चीज है, आपको ना क्वेश्चन 4 कैसे प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन 4 के जितने सम्स ना, हमने बहुत सारे सम्स आपको क्यूआर बुक में दिए हैं. क्यूआर बुक में इफ यू सी, दैट इज द रीजन हमने हर चैप्टर के एंड में भी किए थे. और आप देखो एट द एंड वी हैव मेंशन वन मोर एट द एंड ऑफ द बुक, Conceptual questions. Concept-based question. उसमें और भी लिए. तो वो और हर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस किए ना, हर चैप्टर के एंड में हर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस किए वो, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब कर लो, बहुत है, मोर देन इनफ. थैंक यू सर. नितिन यस. नितिन यस. Okay, thank you. So that's what I would just want all of you to do well. टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है सर. हाँ बोलो ना अदिति, क्या बोले? सर इन माय पेपर मेरा क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 4 हमेशा छूट जाता है. ये एक मिनट, आप लोग ने टाइम मैनेजमेंट सर ने जो डिस्कस किया वो देखा? हाँ सर. यस 5 minutes first. sir. एक 5 मिनट में एक छोटा चीज बताता हूँ फटाफट, जो उन्होंने उस दिन बताया था. मैं जस्ट वो रखा था स्लाइड, इन केस यू हैव टाइम आई जस्ट शो यू दैट. जस्ट अ मिनट. एक 5 मिनट में एक छोटा सा चीज बताता हूँ जो अदिति ने बोला. अदिति, आई जस्ट कम ऑन टू योर पार्ट. अब भी बताता हूँ. जस्ट अ मिनट. जस्ट सी दिस ना. ये आपको सर ने डिस्कस किया था उस दिन. Yes sir. Okay, this sir had discussed with you. Okay, now listen to this. Yes, मीनार सर ने बोला है पंकज सर will be taking a similar session for algebra. Okay.
So that is confirmed for you. Pankaj sir will be taking a special session, a separate session for you with algebra. Okay, okay. अभी सुनो, अभी ये just मैंने जो सर ने explain किया ना, वो just ये छोटा सा part आपको बताता हूँ. आपको ना algebra में कभी भी time management का issue नहीं होता है. Everybody knows because any paper you write of algebra easily you are able to finish. सब लोग agree करते हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ बोर्ड में 2 ही पेपर्स हैं जहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है. वन इज English, Marathi. या वेल सेड. इंग्लिश तो फिर भी मैनेज होता है. एक तो बहुत लोगों को ज्योमेट्री में इशू होता है और एक में मराठी में इशू होता है. मराठी तो मैक्सिमम होता है. मराठी तो सर चेकिंग कुछ रहता ही नहीं है. हाँ, लास्ट में लिख के दे दो. फिर ऐसा होता है. तो वो 2 पेपर्स हैं जहां पे ना आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है. अभी ज्योमेट्री में क्या होता है, मैं सुनो एक छोटा सा चीज बताता हूं. अभी इसमें आपने देखा, ये देखो ना, अगर आपको ये ऐड करोगे, मैंने टाइम, सर ने जब भी बताया टाइम बचाने कहां पे बोला था, इट वाज इन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. डू यू एग्री विद दैट? Yes, sir. सर टेक्सचुअल क्वेश्चन रहते सब. हाँ, मतलब 4 और 5 में आपको सर ने बोला था 24 मिनट से पूरा 24 मिनट ले लो. क्वेश्चन नंबर 5 में तो आपको ज्यादा टाइम दिया, तो इसमें टेंशन नहीं है. आप बोलोगे सर मुझे उतना टाइम चाहिए. नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू शुड प्रैक्टिस टू वर्क ऑन दिस टाइम मैनेजमेंट. This time management you have seen, and if you just observe and go and apply in the board exam, doesn't apply. होता ही नहीं है. तो कैसे अप्लाई होगा मालूम है? सुनो, आपको क्या करना है. पहला काम है ये 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. ओके, इसमें मैंने बोला अगर ये सब टाइम ऐड करोगे जो मैंने यूज किया, आई हैव सेड 65 मिनट्स. सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. मैं बोल रहा हूं वो है 65 मिनट्स. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो. अभी आपको ना 4 पेपर्स, अभी listen ना Aditi, you will get this problem solved if you are doing what I am saying right now. Listen to this. I am saying that question number 1, 2 and 3 में टाइम बचाओ. आप बोलोगे सर ये तो सिंपल सम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट प्रैक्टिस कैसे करोगे बोर्ड एग्जाम के लिए? 4 पेपर सॉल्व करना है आपको. क्या करना है उनमें? टेक अप अ पेपर ऑफ, अभी आपने प्रीलिम्स सॉल्व किए, इतने सारे पेपर सॉल्व किए, यू हैव पेपर. सो व्हाट यू डू इज टेक अप एनी 40 मार्क पेपर ऑफ ज्योमेट्री, स्टार्ट राइटिंग ओनली क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. Don't do all. I repeat, don't do all. First, focus only on question number 1, 2 and 3 because आपको टाइम वही तो बचाना है. तो उसका टारगेट टाइम क्या दिया? 65 मिनट्स. मतलब फर्स्ट पेपर लो, सॉल्व करो. 65 मिनट में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं देखो. मे बी फर्स्ट डे नहीं होएगा, डजंट मैटर अदिति. तो व्हाट यू डू इज नेक्स्ट डे पिक अप 1 more पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग अगेन क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. सॉल्व करो. आपका बहुत सा आप लोगों का सबका खत्म हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. बट स्टिल आई एम सेइंग आई वांट यू टू सॉल्व 4 पेपर्स. आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 के आप 4 पेपर सॉल्व करोगे. आप बोलोगे सर मैंने तो वो टारगेट फर्स्ट पेपर में अचीव कर लिया, सर मैंने वो सेकंड पेपर में अचीव कर लिया, फिर भी मुझे चाहिए कि आप 4 पेपर करो. रीजन बताता हूं, सुनो. बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी इन अ हैबिट. हैबिट क्या है? ऐसे आदत में रहो जहां पे आपको ऐसा आदत हो जाए कि आप टाइम स्टार्ट जो किया ना वो टाइम देखा, और क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होने के बाद जब भी टाइम देख रहे हो ना, तो आपको रियलाइज होना चाहिए अरे तो 65 मिनट में खत्म हो गया. मतलब यू आर नॉट सीइंग टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन. यू जस्ट स्टार्टेड द पेपर एंड व्हेन यू फिनिश क्वेश्चन नंबर 3 एंड यू सी द टाइम, यू शुड बी हैविंग इट कंप्लीटेड बिफोर 65 मिनट. वो आदत कभी होएगा, वो 1 पेपर से नहीं होता है, वो 2 पेपर से नहीं होता है, वो कम से कम 4 पेपर करो. So when you do this, so that is why I said get into that habit. Now that habit is done. Now I want you to solve 2 more papers. और 2 पेपर. अभी और 2 पेपर सॉल्व करोगे, बट वो और 2 पेपर फुल पेपर सॉल्व करोगे. फुल पेपर, फुल. मतलब अभी सोचो जब when you are writing that 5th paper, imagine आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपने टाइम चेक किया, बिलीव मी यू वुड हैव फिनिश्ड बिफोर 65 मिनट. अभी इमेजिन करो आपके पास कितना टाइम है. यू हैव 55 मिनट्स लेफ्ट एंड यू हैव ओनली 3 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड. 2 year and 1 year. योर कॉन्फिडेंस इज सो हाई. आप बोलोगे अरे वाह मेरे पास बहुत टाइम है. आपका मैस क्यों होता है? अदिति ने जो अभी क्वेश्चन पूछा, सर मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं रहता है. अभी टाइम है ना. सो नाउ व्हेन यू हैव टाइम टू थिंक आल्सो. योर थिंकिंग इज गुड. यू आर नॉट पैनिकिंग. व्हेन यू पैनिक यू आर नॉट डूइंग एबल टू कीप योर थॉट ना. बट अभी पैनिक ही नहीं हो रहा है, काफी टाइम है, रिलैक्स्ड हो, तो आप आराम से सोच समझ के कर सकते हो. मैं यही बोल रहा हूं, ऐसा करोगे तो अभी एक पेपर फुल सॉल्व करो, देन another paper, 2 full papers you solve.
6 papers in all is more than enough to get you a full practice of this time management. ये time management आपका perfect set होगा, perfect. And 20 minutes है ना, 20 minutes. 20 minutes is your 20 minutes is your minimum time I'm saying you can save. आप इससे ज्यादा सेव कर सकते हो. आप इससे ज्यादा सेव कर सकते हो अगर ये प्रैक्टिस करोगे. 20 मिनट तो मैं बोल रहा हूँ कम से कम सेव होएगा. Yeah, Vikramjit, you asked a question. I just saw your question. Which chapters has high chances this year for? See, I'll tell you, you can't predict questions now. But basically, अभी तक कैसे आते थे? अभी तक इसमें से आ रहे थे. You have been getting from construction one sum. You have been getting from Pythagoras one sum. ऐसा आ रहा है या तो similarity ऐसे आ रहा है. But you can't predict. It's only that they are just following the कि पूरा अभी ऐसा है ही नहीं. पहले का जो इससे पहले जो old portion था ना उसमें entire paper pattern was fixed. मतलब इधर यही आ रहा है, इधर यही आ रहा है, इधर ये. अभी का paper pattern doesn't follow that. So you can't have anything saying that ये question number 5 में इधर से आएंगे. But ज्यादा chances होते हैं coming from similarity, coming from Pythagoras, coming from construction ऐसा. But question number 5 are very easy sums. They're not difficult. And they're very simple. You'll have ample time. That's why we have given time for you to think आराम से. तो आप टेंशन मत लेना. Only thing is work on this time management which I've said. 4 papers, question number 1, 2, 3. Next 2 papers, full papers. इतना करो बहुत हो गया. You'll do well. Aditi, your problem is solved? Yes, sir. And Aditi, please do practice this way. You will be very confident, beta. You will never fear of not finishing your paper. आराम से हो जाएगा. Okay. Okay. Yeah, we'll do that too. Yes. We'll see to it that you have this. We'll just edit this and put it on your ARIV ka website or the channel so that you're able to see this. Sir, I wanted to ask one thing. हाँ बोलो ना बेटा. Yes, sir. In one of the prelim papers of ARIV, there was one construction given an activity in the form of flowchart, and they had told to construct it. But if we do like that for an activity, do we have to make an analytical figure? No, not at all. Not required. Not at all required, Vishal. Only analytical figure should be for 3 mark or 4 mark. इधर क्वेश्चन नंबर 5 में ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मतलब लोग पहला बोलेंगे ट्रायंगल बनाओ, सेकंड बोलेंगे सर बाइसेक्टर बनाओ, थर्ड बोलेंगे बाइसेक्टर बना के उसका लेंथ फाइंड करो. ऐसा दिया ना, just do it in the form they have asked and answer. Keep on answering that. You need not draw any analytical figure there. Okay, Not sir. at all. Thank you, sir. Good question, Vikshan. Yeah, Navnath has answered. Pandey, Kirti. So we are really okay. My pleasure, Kirti. My pleasure, beta. It's been my pleasure to actually be with you and discuss things with you. Okay. Wanted to know on internet, we are only able to access to E previous year question papers. Okay. Listen. Sanidhi just asked me a question. Sanidhi says that the set E hai. Sanidhi, you need not worry because in the question number 1, 2 and 3 na, kuch in 4 and 5 remains the same for all sets. 4 and 5, question 4 and question 5 remains the same for all the sets which come. So you need not worry about the question 1, first 3 questions, question number 1, 2 and 3. That remains common for all. 4 and 5 में 4 and 5 remains the same. Question 1, 2, 3 remain different. But वो सब textual है ना, तो उसमें tension नहीं है. Okay, sir. So that is nothing to worry about. Vikramjit, as many questions you want to solve, you can always solve. But what I'm trying to tell you is, आप बोलोगे सर मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 में वो 100 में से आना चाहिए. नॉट नेसेसरी. तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, वो 100 जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तभी हर क्वेश्चन को क्यों सॉल्व कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो समझो. जो आज मैंने डिस्कस किया था आपके साथ वो समझो. It's not only the number of questions. How you do, just discuss that and understand that. So that is why so many questions are there in the QR book itself. But if you have more access to sums like you had in the prelim, you had in the prelim of your friends का school, वहां से जितने questions आप access कर सकते हो access कर लो और उसको आप solve करो. Doesn't matter.
You can always solve. If you end up having any type of queries, as I said, you can just you can be doing that to me. Means, as I said, you can ping me on this. Means if you have any questions to be answered, you can just post those questions with an image of that on the my Insta ID. You can do that. So that will, if possible, I'll just send you the solutions of that. Whatever is the solution, I'll always do it for you. वो मैं Sir, pass on कर दूं. Yeah. sir, in the flowchart type of questions, like in the main question, it is written like draw tangents to the required circle at the required point. But in the flowchart, it is not like in the last step, it is not written to draw the tangent. So like we have to keep the circle as it is. Like, What was the question initially? What did they say? sir, like if they have written like activity question 3 and they said like draw tangent to the circle with center O at point A, for example, then like and in the flowchart it is not mentioned anywhere to draw a tangent. They have just mentioned to draw a perpendicular and to like extend the line. So we have to draw the tangent. Hey, you should draw the tangent because in the initial question itself you had it, na? So you should draw it because the initial question said that. So you should do it, beta. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Janvi. And yeah, Srimant Raje, thank you. Thanks for your comment. It's always been my pleasure. I'm always energetic when I'm with the students. So my energy actually comes out when I'm with there discussing the questions with you, interacting with you. That is what I love. So whether it's been on the screen there or whether it is a discussion like this, I love that. And thank you for that, beta. Thanks for your awesome comment. Thank you. Yeah, yes, Alok, as you said, we will see to it that you get the access to this. Just give us a day's time. We'll just put the entire video for you on the ARIV. They will communicate to you. So in a day's time, by day after tomorrow, you should have this video on your there. I think so. You have a ARIV channel, right? So on that channel, we'll make it available for you. This particular. Okay, sir. Thank you. So that you have that access at any point of time. You want to see something, you can always see. Don't worry. We'll see to it. Yes. That's the benefit of online which you have. So we'll make sure that you're getting it. Okay. Thank you. Thank you. Thanks. Okay. Thank you. Thank you, beta. Thank you, Reni. And thanks for your all awesome time. I'll just, Ujay, can you just take me again to the next screen? So I just have a view of everybody. Ujay? Yeah. Second, yeah, thank you to all. I'm just not able to take all your names, but thanks to all of you. Sir, say thank you to Ujay sir also. He's our team member because he's the person who's operating the entire thing for me. Means the screen, everything when I'm recording, so everything is. So Ujay, thank you from the entire team. मतलब सब बच्चों के तरफ से thank you बोल रहे हैं. Okay. Thanks, it helps. Swayam, it's been our pleasure, beta. Okay, your confidence has to be high. That is our utmost objective when we are taking sessions with you. Thank you, Shruti. Thank you, Swayam. Thank you, Vishal. Thanks to all of you. Thank you, Reni. So it was awesome time. I know by the time I said 1, I told 15 minutes from 7. It was supposed to be 7:15. Now it is 8:05. So it's almost an hour more, which I took. But I had awesome time. I didn't realize when I spent 3 hours with you. So it's almost been more than 3 hours where we have spent, but it was awesome time without any, I didn't have a glass of water also in between, but I loved it. Discussion, because that energy keeps, जैसा आपका discussion होता है, आप questions पूछते हो, अच्छा लगता है. That makes it very nice because I know people are interested to learn more. And that's the only thing which we want to happen. So keep that learning going on. You'll do wonderfully well, not only in 10th, in future also. Thank you, Nitin. I had an awesome time with you all. Swayam, I'll do that. Swayam, you can connect with me on the Insta on this. I'll do that there. Sure. Okay. Thank you, Sriman Raje.
Thank you to all of you. All of you. I know I have not been able to take name of each and every one because there are a lot of them. And I'll tell you one thing. I'm not that great at remembering names, but I love the energy, and that is something I loved. Okay. Yes, Parimiti. Thank you. Yeah, yes, confidence yours is high. That is something which is very nice. I love that. Pragati, thank you. Thanks to everybody. Thank you, sir. Yeah, thank you. Hey, anybody wants? We would be asking our doubts in the comment section of your channel. Yes, Nitin, you can do that, beta. You can do that. You can always do that. Now, I loved. I know now you'd be thinking, sir, आप रात के 9 बजे तक तो नहीं लेके जाओगे, खाना खाना है, तो आप लोग have your dinner. So enjoy yourself and do see to it that whatever time is now left ना, जितना time अभी बाकी है आपके फर्स्ट पेपर से 2 दिन पहले तक वो फर्स्ट पेपर के लिए रखना या 3 दिन रखना फर्स्ट पेपर के लिए, उससे जितने भी टाइम है ना उसमें सब कुछ कंप्लीट कर लो, सब सब्जेक्ट का जो आपका नहीं हुआ है परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट दैट. ओके सिद्धि, थैंक you beta, your confidence high, that's what we want and I loved it. Okay, Nitin says dinner it as 9:30, you can take till 9. Nitin, thank you, Nitin. So Nitin is okay. Nitin, I thought you are inviting for the dinner. Nitin? No, sir. Okay, thanks, Nitin. Thanks. Okay, so practice sums sequence. We can follow the chapters, which revisions. Yeah. While revision time, you can do that. Yes. Thank you, Pooja. Thanks a ton. Pooja, thank you. So it's been awesome. So I didn't realize when I spent 3 hours with you. I had an awesome time. Hope you had the same. Okay. So first time I out of the video and talking to you means हमेशा वो one way interaction से 2 way interaction तो हुआ. So that was nice for me. That gave me a good thing. Okay. Welcome Pranjal. Welcome Vikrant. Thank you Pranjal. My pleasure, beta. Yes. Chalo, now I know now it would be like all are thinking kabhi wind up. So it's been 8:10. So thanks for your extra time of 1 hour 10 minutes. From 7 we extended till 8:10. So that was nice. I loved it. Thank you. So, welcome Sannidhi. Welcome. Thank you to all. Okay. So I would. Thank you, sir. Bye, sir. Oh, Vikrant, it's not that way. Yeah. Yeah, it's been my beautiful sum has been my always my that dialogue. मतलब वो हमेशा होता है, क्लासरूम में भी पढ़ा था तभी मैं हमेशा बोलता था, so now we discuss a beautiful sum, तो बच्चे को समझ जाता था आज. But I used to say beautiful because I wanted the child to give the answer, and when they get the answer on their own, they themselves used to feel अरे हाँ ये तो है अच्छा सम है, because उनको खुद आंसर आता था. So that's why it is beautiful. Okay. Thank you Nitin, thank you Swayam, Anshika, welcome beta. So thank you. Chalo, let's take. Bye. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Sir, Bye. thank you, sir. Take care, sir. Bye, sir. Thank you, sir. My pleasure. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye, sir. Thanks. Sir, we can God bless also all of you. refer to Thank you. question bank, right? Sannidhi, what you asked? We can also refer to the question bank, right? Yeah, Which is you can. currently released from the board. Yes, you will find there are all 3 mark questions only in that, but you refer to it. I took that, last 2 sums of trigonometry which I took. Yes, sir. I took it from there. Okay, sir. That the reason why I picked up, because I went through it, I wanted to see if there's something different. Okay, that's the reason I found those 2. I said I should be discussing that. That's the reason I took that. Go through that. There are beautiful sums there, but they're all 2 mark, 3 mark. You will be, but solve it. It's better. Acha hi hai. You get a of those sums. Do that. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, Janvi. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you. Thank you, sir. Bye.